So welcome to the post-season wrap of our show. I think it's been 4 or 5 months now since we started doing this podcast. Now, फिर से वो pause आ गया था, and again we are starting fresh. Again we are hoping that we'll be live, we'll be more consistent this time around. But yeah, so welcome Rishabh and Anshuman. एक काम Last करना time when we शर्मा, spoke, ये चीज को तू रिकॉर्ड कर दे, तो फिर बार बार हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा, फिर से वही बोलना पड़ेगा थोड़े 3-4 महीने बाद कि गाइस वी आर बैक हाँ, अगेन। बट लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी उसके बाद से आई थिंक बहुत सारी चीजें चेंज हो गई. For Liverpool personally, तो Klopp decided to leave Liverpool. उसके बाद we were in a title race and somehow we went out of the title race. We went out of Europa League. We went out of the FA Cup. तो मेरे लिए तो लास्ट 3-4 महीने काफी ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर थे. आई एम श्योर बिल्कुल फॉर बिल्कुल, चेल्सी तो हम लोग तो इट बहुत वाज सही चल रहे थे। अगर चेल्सी तो तेरा इमोशनल आई थिंक रोलर कोस्टर था ना ब्रो, तो हम तो भैया नैया चेल्सी पार थी हमारी। नहीं, बट चेल्सी का मुझे लगता है हैड अ रिसर्जेंस इन द लास्ट 2 months at least. They Nobody expected them to finish where they finished in the at the end of the season. United, on the other hand, I think struggled in the league, but then what happened yesterday in terms of the FA Cup victory gives them hope for the next season. At least that's what uh, the United fans are hoping right now, that this builds on, and under the new ownership, maybe there'll be a better changes in the during the preseason. But yeah, let's talk about football. Let's talk about all that has happened in last 3-4 months. All that is happening right now. A lot of managerial shifts are happening. We are seeing Barcelona, who is about to announce Hansi Flick as their manager. बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग, तो सबसे ज्यादा मुझे आई थिंक अभी ये लगता है दैट विंसेंट कंपनी इज गोइंग टू बी बायर्न म्यूनिक्स मैनेजर. आई थिंक इससे ज्यादा बढ़िया जॉब चेंज मैंने आज तक किसी का नहीं देखा है. From Burnley getting them relegated, having the worst I think goal scoring record in the Premier League, and he's landed a Bayern Munich job. और मुझे सबसे ज्यादा बुरा आई थिंक बायर्न म्यूनिक या बायर्न म्यूनिक फैंस के लिए नहीं लग रहा है, हैरी केन के लिए लग रहा है. हैरी केन के लिए दैट लग रहा है फर्स्ट टाइम वन एवर आई वन थिंक मोर बायर्न सीजन ने कोई ट्रॉफी भी लेस। ट्रॉफी नहीं जीती है, and that is the only season when Harry Kane was there. I think he went there to win the trophies, and पहला भाई सीजन जहाँ पे उन्होंने कुछ उसने तो इंस्टाग्राम पे उसको भी किया था विश, केकेआर को तो लग गया था लोगों को कि केकेआर भी गई बेचारी। केकेआर ने आज केकेआर जीत गई बेचारी। उसने केकेआर को विश किया था। हाँ, केकेआर को मतलब भाई आई थिंक बायर्न का कुछ होगा ना इंटीग्रेशन, बट कुछ किया था उसने कि भाई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। तो लोगों के आगे थे कमेंट्स की शिट यार से विश कर दिया, अब गई, हम लोग केकेआर भी हार जाएगी फाइनल। चेल्सी ने आई भी गेस करा जीत था गए। श्रेयस अय्यर को, तब भी यही लग रहा था कि अच्छा शायद आज केकेआर का, हाँ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीती है केकेआर आज. सही में भाई अंडरडॉग्स हो गई थी अचानक से। बट और मैनेजरियल शिफ्ट, आई थिंक आर्ने स्लॉट इज गोइंग टू बी लिवरपूल्स मैनेजर, वो तो कंफर्म हो गया था. आई थिंक नॉट अ वेरी वेल केप्ट सीक्रेट. चेल्सी, आई थिंक अभी भी दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ मैनेजर. वेरी सरप्राइज्ड दैट they decided to part ways with Pochettino based on how they ended the season. I think it looked that he was finally getting his team right, and then his players were coming back from injury. And a little shocking for every football fan to see that Pochettino is fired or mutually left the job. But yeah, so that's another managerial change. Then I think for Ten Hag also, although I personally feel that nahi hone wala hai Ten Hag ka sacking, but too much in the media that Ineos and Manchester United are looking into a shift in their strategy for the managerial position. So yeah, let's talk about the managers only. I think let's start with Barcelona only. That Hansi Flick, I think, is going to be the new manager. I think Barcelona का भी इतना मैंने अजीब सा वो भाई सिचुएशन नहीं देखी है with the managers. हम 3 क्लब्स कंपटीशन में थे कि कौन भाई सबसे ज्यादा सर्कस करने वाला है बना सकता अपने है, क्लब हाँ. के साथ, और लिटरली अगर एक पॉइंट पे चेल्सी का आ गया, आई थिंक सबसे पहले तो जावी से शुरू हुआ था सैकिंग, बिफोर हाँ पॉच का न्यूज आया था। हाँ, तो बार्सिलोना का जावी हुआ का तो तो 2 यहाँ बार आ पे चुका ना. 3 बार भाई। जावी ने पहले बोला कि एक बार जावी आया ने पहले एक बार बोला आया कि कि ही इज लीविंग, म्यूचुअल कंसर्न से इज लीविंग। फिर उसने बोला कि मैं टर्न लाइक आई एम थिंकिंग अबाउट लाइक स्टेइंग विद द क्लब। फिर उसके बाद आया कि सैक ही कर दिया, उसको फायर कर दिया।
और वो फायरिंग तो मुझे समझ में भी नहीं आई एक दिन पहले बिफोर देयर लास्ट गेम इन ला लीगा। लाइक वो तो कोई सेंस भी नहीं बन रहा था उस चीज का। But I ये तो think Hansi बहुत ही Flick is a good appointment in terms of the the experience that he has to win big trophies. But I think I'm not sure whether he is managing any club right now or he has managed any club in the recent few years. बाय So नहीं की थी वो लास्ट। last वही था, I think उसके बाद कुछ करा नहीं है. He's not taken up उसके any बाद job. उसका जर्मनी की थी ना थोड़े टाइम के लिए। हाँ, जर्मनी के बाद. जर्मनी हाँ. से फायर हो गया था, जर्मनी में भी कुछ किया नहीं इसने। नागल्समैन से पहले वही था ना, हांसी फ्लिक ही था ना. हाँ, हांसी फ्लिक ही था। हाँ. आई थिंक वहां तो जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी. अभी भी नहीं है वैसे तो बहुत अच्छी. बट आई थिंक अंडर हिम दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट. So, तुम्हें क्या लगता है about Hansi Flick and this managerial appointment, removing Xavi, getting in Hansi Flick? देख, until and unless ना, मतलब हांसी फ्लिक कर तो देगा, he might be a good coach, right? He might find the kind of lapses that Xavi could not find in the team. But the problem is if ये अपना बार्सिलोना की board does not give him the players, right? Does not give him the backing of finances to push in the new talents that they desperately want a kind of an elite level TM, not just a good TM, an elite level TM right now. And if these things all come together, then yes, Hansi Flick might be a successful manager. But अगर वही होगा कि अगर आपने again you don't back him through the financing, you don't back him with the players, अगर आप wage structure again is the same as it was under Xavi, I think Hansi Flick would also struggle. क्योंकि genuinely बता रहा हूँ कि Xavi did not struggle कि अचानक से जैसे पोचेटिनो का लग रहा था कि यार कोई tactical vision ही नहीं है चेल्सी में. Like for the first 8 or 9 months, genuinely it felt like there was no vision. मतलब कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी नहीं, बस टीम शीट देखी, प्लेयर्स तो बचे नहीं थे, आधे तो इंजर्ड थे, जो बचे हुए हैं सबको घुसा दो. फॉर द फर्स्ट 4 months फॉर द फर्स्ट 3 months तो अपना लीवाई कोलविल वो खेल रहा था लेफ्ट बैक. तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स तो जावी की नहीं थी. द प्रॉब्लम इज कि जावी could not get the players that he wanted. And then they kind of struggled. And struggled मतलब ऐसा भी नहीं कि they just fell off कि 7th 8th आ गए. Right? They finished second, right? बस वो पॉइंट्स का गैप थोड़ा सा ज्यादा था. पॉइंट्स का गैप थोड़ा ज्यादा था. एंड आई थिंक व्हाट आई फील कि उनको अपना जो कॉन्टिनेंटल जो है स्टैचर, वो आई थिंक बार्सिलोना का काफी गिर गया इन द लास्ट 2 years विदाउट चैंपियंस लीग. और इस सीजन मतलब इस बार तो चैंपियंस लीग से बहुत जल्दी नॉकआउट हो गए थे. तो आई थिंक दिस प्रोबेबली वाज द रीजन व्हाई ज़ागी क्वार्टर फाइनल पहुंचे हो गए ना. जल्दी क्या मतलब भाई अब बार्सिलोना के लिए एटलीस्ट इट रिक्वायर्स कि तुम सेमीफाइनल तक तो जाओ. भाई 2 टाइम से तो क्वालीफाई भी नहीं कर रहे वो राउंड प्लेऑफ्स के लिए, तो उस हिसाब से तो ठीक ही है. क्वार्टर फाइनल्स पहुंच गए, बहुत है. अब पता नहीं है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट तो मेरे को कोई रीजन ही नहीं लग रहा ना कि ज़ावी निकला क्यों. इधर बोर्ड के साथ उसकी हो गई तानाशाही कि भैया नहीं हो पाएगा, ये सब क्या मजाक चल रहा है, पहले तुम मेरे से भीख मांग रहे हो कि रुक जाओ, फिर तुमने निकाल भी दिया बिकॉज सम ऑफ द परफॉर्मेंसेस. तो मुझे तो ये समझ नहीं आता दैट आई थिंक दिस सीजन रियल मैड्रिड ने 95 पॉइंट्स लिए थे एंड आई थिंक बार्सिलोना में अभी जो देख रहा हूँ 82 पॉइंट्स पे थी. एंड लास्ट 5-6 सीजन आई हैव सीन दैट कोई भी टीम 90 पॉइंट्स टच नहीं करी है. तो आई थिंक रियल मैड्रिड हैड अ अमेजिंग सीरीज दिस सीजन and it was very difficult to compete with them. तो ऐसा नहीं है कि Barcelona had a very bad season. It's just that Real Madrid had a very good season. Last year तो I think first season में Xavi ने जितवा दिया था title. So I don't follow La Liga इतना. I think Rishabh will be able to better tell कि issues थे क्या, because from where I see it, Barcelona was struggling a lot. When Xavi came, he won them the title, the league title. And I think इस साल भी उन्होंने एक कोई लीग कप जीता है शायद, right? नहीं, कुछ भी नहीं जीता इस साल. कुछ नहीं जीता है. लास्ट से 2 जीते थे. वो जो कोपा डेल रे था वो तो वो जीती है, बिल्बाओ जीती है. तो अच्छा, क्या ही जीते हैं. हाँ, और आई थिंक वो जो स्पेनिश सुपर कप लगता है ऋषभ क्या इशू नहीं. अरे यार, जो तेरा पहला क्वेश्चन था अबाउट हांसी फ्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से देख, बैकिंग तो बार्सिलोना हमेशा ही देती है. इन टर्म्स ऑफ साइनिंग्स तो भाई उन्होंने अभी लास्ट ईयर भी करे हैं. फिलिक्स भी ले आए थे, कैंसेलो भी ले आए थे, डेम्बेले भी आ गया था उनके पास, लेवेंडोस्की भी लेके आए.
बैकिंग तो फुल मिली है, और ये लेवेंडोस्की इसके अंडर ही आया, आई थिंक जावी के अंडर ही आया था मेरे हिसाब से। बस वो साइनिंग्स वर नॉट रियली मेकिंग सेंस, क्योंकि डेम्बेले का ऑलरेडी ठीक है, डेम्बेले का जो इंजरी रिकॉर्ड है has been really bad. उस हिसाब से चलो he still played a lot of games this season. कैंसेलो और ये फीलिक्स ने ज्यादा कुछ किया नहीं है. कैंसेलो has been decent for Barcelona. मेन ये है भाई कि जो जावी का पोजेशन बेस्ड फुटबॉल है वो हैंसी फ्लिक तो नहीं खेलने वाला है, तो वो पूरे अब वापस वही है जो ये बोल रहा है, वो सही है कि बैकिंग मिलनी चाहिए, बट वो बैकिंग का मेरे को तो ऐसा कुछ डाउट लगता नहीं कभी। बैकिंग अब मेरे ख्याल से जितने भी क्लब मैनेजर्स आए हमेशा ही मिली है, फुल बैकिंग मिली है। वो किसी ना किसी तरह, वो जो हर सीजन में न्यूज आती है स्टार्टिंग में कि भाई इनके पास पैसे नहीं है टू रजिस्टर फॉर प्लेयर्स, वो हर साल आती है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तरकीब निकाल ही लेते हैं वो भाई। अपने 2% सेल्स भेज देंगे स्पॉटिफाई का, पता नहीं कुछ भी ग्राउंड का, कहीं से कुछ ना कुछ पैसा डाल के वो कर लेते हैं हिसाब से। मेन बट ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है क्लब में, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है क्लब में, और यही अगर यही चलता रहेगा तो फिर तो ये हैंसी फ्लिक भी जाएगा। बट हैंसी फ्लिक का भी कोई ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड जो तू बोल रहा था वो भी कुछ है नहीं ऐसा। बायर्न म्यूनिख में उसने एक सीजन आया है और आई थिंक वो ट्रेबल जिताया था उसने, वो ट्रेबल वाला था, कोविड के टाइम, राइट? हाँ, उसके बाद तो क्या ही किया उसने। आई डोंट रिमेम्बर कि उसको सैक किया था बायर्न ने या वो निकल गया था, वो भी म्यूचुअल कंसेंट से, आई डोंट रिमेम्बर। मुझे भी तो नहीं याद, देखना राइट, तो क्योंकि उसके बाद शायद नहीं, नागेल्समैन आया था। आई थिंक वो जर्मनी के लिए चला गया था, उसने बोला कि मैं जर्मनी हाँ, कोच करने जा बट रहा पता हूँ। नहीं वो सैक हुआ था या पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, या फिर चला गया था ऐसे, या जो तो सही बोल रहा हूँ, मैं भी पता नहीं। बट वही है यार, मेरे को लगता है कि उतना बार्सिलोना अंडर जावी हैज नॉट बीन वेरी कंसिस्टेंट, इवन दो व्हेन आई वाज फॉलोइंग लास्ट ईयर आल्सो। लास्ट ईयर पूरा चैंपियंस लीग तो पूरा हगा है, इंटर मिलान के साथ हारे थे, और एक और कोई गेम उनके साथ कोई प्लेयर्स मैचेस थे जिनके आई थिंक बायर्न ही तो थी, हाँ बायर्न थी और इंटर मिलान थी, राइट? और शायद एक कोपेनहेगन या कोई कोई दूसरी टीम थी उनके साथ। सब सारे गेम ही हारे थे वो, एक भी गेम नहीं जीते थे। एंड इवन इफ यू लुक एट गो बैक टू ला लीगा गेम्स, ला लीगा गेम में जितने उनके जो टफर ओपोनेंट्स थे लाइक बिल्बाओ, मैड्रिड, बेटिस, इन लोग साथ जो खेलते थे, उसमें भी उन्होंने कुछ किया नहीं है, बहुत मर मर के जीतते थे। और इस सीजन भी यही किया है। एंड स्टार्टिंग में जब वो खेल रहे थे सारे गेम्स लाइक लिटरली लेवरकुसेन वाली ही होती थी उनकी, 86 88 मिनट्स में जा जाके गेम्स निकालते थे वो। और अल्टीमेटली इट जस्ट शोड आफ्टर अ व्हाइल कि वेयर दे वर नॉट एबल टू विन गेम्स, पीछे हो गए थे ऑब्वियसली। फिर थोड़ा सा बीच में उन्होंने पिकअप कर लिया, एंड वो दूसरी कौन सी अपनी जिरोना, वो जिरोना ने थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ कर दिया था। एटलेटिको मैड्रिड हैज नॉट बीन वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, तो उस हिसाब से still to recover and get 82 points is a good enough season. But yeah, in terms of basketball style, football style, obviously उनका कुछ वो नहीं है, मतलब मेरे को तो कुछ उनका लगता नहीं है स्टाइल, टू बी ऑनेस्ट, और कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिखी है मुझे यार। आई थिंक मुझे ना, तो यार एक चीज, हाँ बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जो उनका भी सीजन वैसा ही गया है, बट बिकॉज प्रोबेबली आई थिंक उनका थोड़ा सा इजियर लीग है कंपेयर टू हमारा, कि पर मेरे को क्या लगता है ना कि द रीजन व्हाई न्यूकैसल फेल ऑफ एंड व्हाई बार्सिलोना आल्सो फेल ऑफ वाज बिकॉज इससे पहले सीजन में दे डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, राइट? दे जस्ट फोकस्ड ऑन द लीग। सडनली प्लेयर्स नए आ गए, नाउ यू नीड टाइम टू जेल अप इन द टीम, plus now you are playing probably what 2 games a week, plus with the domestic football आप कभी कभार 3 games a week खेल लेते हो, कभी 2 games a week खेल लेते हो, and now managing the squad as well as managing the fitness, उनकी उनकी जो फिटनेस है, उनकी जो probably उनकी जो स्ट्रेंथ और स्टैमिना है, उन सबको मैनेज करने में एटलीस्ट मेरे को तो लगता है कि ये सीजन उसी में चला गया जावी का, टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि अब मल्टीपल गेम्स, जो मल्टीपल फुटबॉल कॉम्पिटिशंस हैं, उसमें अब इस टीम को कैसे बिठाना है। एंड हैविंग डूइंग दैट, मे बी ऑफ कोर्स चैंपियन लीग में दे फेल ऑफ अगेन, बट दे काइंड ऑफ रिकवर्ड इन द इन प्रीमियर लीग, बोल रहा हूँ, इन ला लीगा एंड फिनिश सेकंड। तो इन टर्म्स ऑफ दैट न्यूकैसल जैसा ड्रॉप ऑफ तो नहीं हुआ, बट मैं ये बोलता हूँ कि मे बी द रीजन वाज, इट इज नॉट द ओनली रीजन, बट दिस वाज अ वेरी बिग रीजन कि अब इनको मैनेज करना पड़ रहा है। और आई थिंक एक और सीजन इनको दे देना चाहिए था जावी को, कि अभी इसने यहाँ पे सेकंड तो फिनिश कर दिया है, देयर वाज सम काइंड ऑफ चेंज वी कुड सी, और अब जावी अंडरस्टैंड्स कि भाई अब मेरे को मैनेज करना है दो चीजें, ब्रिंग इन बेटर प्लेयर्स, ब्रिंग इन मोर प्लेयर्स,
to kind of manage your squad, manage your bench. And I think it could have been better the next season rather than sacking him. But But that is my opinion. बट वही ना, पूरी न्यूज तो पता नहीं अभी तक. पहले तो पूरी न्यूज पता चले हम्म. कि पहले उसने टर्न अराउंड किया, फिर अब फायर हुआ क्यों, ये तो पता नहीं है ना एग्जैक्ट रीजन कि पता नहीं कोई लापोर्टा के क्या. साथ क्या दिक्कत होगी, हाँ, उसको तो कुछ होगी. उसका होगा कुछ भाई, कुछ ना कुछ तो बीफ हुआ ही होगा उसके साथ, तभी फैक हुआ है ना. तो जब तक वो पूरी न्यूज आएगी नहीं, तब तक तो बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली रीजन क्या था उसका फॉर हिम लीविंग. बिकॉज अगर वो उसने 4 महीने पहले अनाउंस बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, फिर 2 महीने बाद बोलता है कि मैं रुकूंगा, तो और एकदम से सैक हो गया, ये भी नहीं कि ही सेड कि चलो मैं जा ही रहा हूँ, सैक जब कर ये दिया. न्यूज आई थी कि ये वापस आ रहा है, लाइक उसने बोला कि नहीं ही इज कमिंग बैक, उसी के बाद वो मैचेस हार गए ना काफी कुछ, मतलब चैंपियंस लीग आई थिंक हार गए थे, क्या उससे पहले ही हो गया था चैंपियंस लीग से नॉकआउट. आई डोंट थिंक कि जहां तक मेरे को याद है कि उनके कुछ मैचेस के रिजल्ट्स हार गए वो, और अचानक से आई थिंक लपोटा को लगा कि नहीं नहीं, आई थिंक गलत डिसीजन रख लिया है इसको लेके, और अब निकाल देते हैं इसको. पता नहीं, वो तो बाद में पता मैं चलेगा कहीं तो पढ़ रहा था. न्यूज आने के बाद. यार मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जो साइनिंग्स बार्सिलोना ने करी है ना रिसेंटली, आई थिंक इट हैज ऑल बीन अ स्टॉप गैप साइनिंग कि यार आई थिंक दे हैव नॉट प्लान्ड वेल. जैसे रियल मैड्रिड प्लान्स वेल इन एडवांस कि यार टोनी क्रूज एंड मॉड्रिच आर गोइंग टू run out of their stamina or their career at a point, and now they already have two, three midfielders who can easily replace them. Barcelona hasn't done that because बहुत टाइम तक तो मेसी was pushing them अकेले ही, and now since Messi has left, अभी बस यही हो रहा है. लेवेंडोस्की ले आए, गोल स्कोरर चाहिए था, मिडफील्डर चाहिए था, गुंडोगान ले आए. एक और कोई वो साइन करा था, आई थिंक रूडिगर नहीं, कौन सा जो चेल्सी से करा था, क्रिश्चियनसन करा था शायद, है ना, डिफेंडर. क्रिश्चियनसन, हाँ. हाँ, तो आई थिंक नन ऑफ द साइनिंग्स, कैंसेलो ऑन लोन, फेलिक्स ऑन लोन, आई थिंक कोई भी साइनिंग ना ऐसी नहीं थी दैट दे प्लान्ड इट वेल, एंड इट शोज दैट द क्लब इज नॉट स्टेबल इनफ. मैं अभी देख रहा था दैट इन लास्ट 7 to 8 years they've had 5 managerial changes, and बार्टेमो था शायद इससे पहले, आई थिंक लपोर्टा से पहले 2 साल पहले. आई थिंक जब प्रेसिडेंसी इज चेंजिंग, द मैनेजर्स आर चेंजिंग, there's not a fixed philosophy कि क्लब को किस साइड जाना है. So that is why I think the club is struggling, and I feel I think we can shift from Barcelona to Chelsea, because Chelsea also feels in the similar category that in last 7 to 8 years that they've had 7 managerial changes, and the ownership changes has been happening. I think all the backroom staff. हाँ, 5 तो 2 साल में ही हो गए भाई. 5 मैनेजरियल शायद चेंज ज्यादा तो होगा. 2 साल में हो गए. मैं तो जो सोच पा रहा था बैक ऑफ द माइंड, तो मुझे लग रहा था शायद 5, 7, 8 तो हुए हैं, जिसमें 2 बार तो लैम्पार्ड ही आके सैक हो गया है. बट दूसरी बार सैक नहीं हुआ है, टू बी इंटरिम पॉलिटिकली मैनेजर करेक्ट है. बट बैकरूम स्टाफ चेंज हुआ, आई थिंक पूरा. नहीं बोलो सॉरी. पूरा क्लब का नहीं कुछ बेइज्जती करने वाला था, कर ले. अरे कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस के बेस पे तो सैक ही होना बनता था उसका वैसे. बट जो भी, आई थिंक इसमें अंशुमन ज्यादा अच्छे से बता पाएगा बिकॉज इट्स हिज क्लब एंड he sees it every day what is happening, although we also see Chelsea though I think is in the news for all the bad reasons, but I think दोनों clubs को मैं compare करूँ ना, they fall in the same category where there's no stability, there's no fixed philosophy कि club को ऐसे ही चलाना है. We are fine if we don't do well in 1 or 2 years, but we'll be patient enough with the strategies that we are implementing. So Anshuman, about Chelsea, let's talk about Chelsea only अभी कि why Pochettino was sacked. Do you think it is the right decision going by what managers they are targeting right now? And going by what managers they are targeting, genuinely it does not feel promising. See, I will back the manager भाई पोचेटिनो को भी, जबकि मैं तो चेल्सी के आने से पहले टॉटनहम के टाइम, साउथहैम्पटन के टाइम, पीएसजी के टाइम पोचेटिनो के अगेंस्ट ही रहा हूं मैं. मैंने हमेशा बोला ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, बट ही विल नॉट विन एनीथिंग. चोकर बोलते थे उसे हम लोग. अब वो आया, चेल्सी का मैनेजर बना, पहले टाइम 1 महीना 2 महीना मेरे को प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कहा कि नहीं चलो यार, अब मैनेजर है तो बैक करना पड़ेगा. बट बहुत डिफिकल्टी हुई है भाई बैक करने में. देयर वर टाइम्स, और जनरली बता रहा हूं, आई थिंक अगर ये न्यूज जस्ट 2 months प्रायर आ जाती ना, एक चेल्सी का फैन चू नहीं करने वाला था. मैं भी खुद नहीं करता, सरप्राइज नहीं होता.
कोई भी सरप्राइज नहीं होता, सब खुश हो जाते हैं और भी ज्यादा, क्योंकि पॉच आउट की जो क्षमता थी पॉच इनसे 100 गुना ज्यादा है। तो एक तो ये पॉइंट है कि जो मैनेजर्स अभी टारगेट हो रहे हैं उसके बेसिस पे अगर मैं रिलेटिवली पॉच का कैंपेन जज करूं तो मैं बस इसी से प्रॉब्लम हो सकती है मेरे को इज दैट द प्लेयर स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द मैनेजर एंड द मैनेजर स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द प्लेयर्स, which is the most important thing to build a team on the field. Off the field भी कल्चर बनता है एक with the trust of the manager and the players. But I think ये पूरा सीजन जो है ना, ये पूरा सीजन सिर्फ इसी में चला गया कि कोल पार्मर इज लर्निंग अबाउट जैक्सन, जैक्सन इज लर्निंग अबाउट कि भाई गैलेगर कैसा खेलता है। अब बहुत सारे लोग ये बोलने लगे कि एंजो फर्नांडिस जैसे ही गया और गैलेगर एंड काइसेडो आ गए, टीम कंप्लीटली चेंज्ड। तो वहां पे भी दे आर बेसिकली दे आर जस्ट बिल्डिंग अ पार्टनरशिप्स, और बाय द एंड इट फेल्ट लाइक कि वो पार्टनरशिप बन रही है। वी गॉट आवर प्लेयर्स बैक, एंड कुंकू जब से आया वो 5 गेम में चेल्सी बदल जाती है पूरी, इवन इफ ही डज नॉट स्कोर और असिस्ट। अगर आपने 90 मिनट्स का फुटबॉल देखा है, जबकि वो 90 मिनट्स तो कभी खेला नहीं है, बट एक मैच में आई थिंक वो 48 मिनट के बाद आ गया था, तो आई थिंक ही प्लेड 60 मिनट्स, और वहां पे आई थिंक ही स्कोर्ड अ गोल एज वेल। तो एक तो प्लेयर्स वापस आ गए थे, तो आई थिंक इन उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन थोड़ा सा रेकलेस मेरे को लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट the struggle that we went from August to I guess March and April mid तक, जब हमने जो स्ट्रगल देखा है वो भी बहुत हद तक आई वोंट से 100% ब्लेम पोचेटिनो को जाता, नहीं। आई थिंक उसमें से तो आई थिंक 50% जैक्सन के मिसेज ही ले जाएंगे ब्लेम्स, और प्लेयर्स की भी ब्लेमिंग है। बट हाँ, पोचेटिनो बिकॉज ही वाज द मैनेजर एंड ही वाज नॉट प्लेइंग द प्लेयर्स इन द राइट पोजीशंस, sometime there was some sort of inflexibility in tactical changes. He was very adamant to change the tactic, and there were some instances where I felt that कि यार ये बंदा maybe he just does not like Chelsea, because there are times where जब आई थिंक वो आर्सेनल का ही गेम है जहां पे जब ये तीसरा जब गोल खा लेते हैं तो ही ब्रिंग्स इन 2 डिफेंडर्स, पोचेटिनो ब्रिंग्स इन 2 डिफेंडर्स कि भाई 3 खानेंगे हम, 5 तो नहीं खाने वाले, एंड इमीडिएटली गोल पड़ गया था वापस। तो ये सारी चीजों को देख के मेरे को लगने लगा था मे बी उसमें वो नहीं है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसमें यार, दैट वर्ड, बॉल्स। शायद ही डजंट हैव द बॉल्स टू काइंड ऑफ थ्राइव टुवर्ड्स ही। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि ही वोक अप प्रीटी लेट। उससे पहले ही वाज यस वेरी गुड यस मैन, सर नीचे करके ऑल पॉजिटिव, व्हाटएवर वी आर डूइंग ऑल पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। The moment Chelsea started playing really well on the field, when you could see कि यार ये रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, they are dominating and deservingly winning the matches, तो पोचेटिनो का पूरा आबरू ही बदल जाता है। अगर उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, चिढ़ चुका था वो, he was giving kind of a more of a prompting statement सर, मतलब बेसिकली उसमें वो एटीट्यूड दिखा, एटीट्यूड भी गलत वर्ड है, वही बैकबोन, he started showing the backbone कि नहीं भाई मैं यस मैन नहीं हूं, एंड इफ देयर आर, उसने तो ही स्टार्टेड सेइंग कि क्लब्स में प्रॉब्लम्स हैं, एंड फॉर द प्रॉब्लम आई शुड नॉट बी द ओनली वन टू बी ब्लेम्ड, एवरीबॉडी शुड बी इवैल्यूएटेड, द डायरेक्टर शुड बी इवैल्यूएटेड। तो ही काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि व्हाटएवर द टारगेट्स वी हैड ही डिड नॉट अचीव इट, राइट, ही डिड नॉट। 6th फिनिश कर दिया उसने, बट देयर वर सम रिजल्ट्स जो वी कुड हैव इजीली वन। आई मीन आई एम नॉट, अगर जो अभी मैनेजर्स है ना जितने भी हम टारगेट कर रहे हैं, थॉमस फ्रैंक और ये सब भी ना आके लिटरली वो गेम्स निकाल सकते थे। लिटरली वो शेफील्ड और बर्नी वाला जो है ना जहां पे हमने 4 पॉइंट गवा दिए, दैट वाज लिटरली द विनेबल गेम्स जो हमारे हाथ में थे। तो आई वुड से कि ही वोक अप प्रीटी लेट। बट तो भाई वो तो आई से नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ बस, वो तो भाई वो तो तेरे अगर थॉमस फ्रैंक और ये भी आएंगे, इट इज स्टिल बेसिकली अब तो हो गया सैक एनीवेज, तो अब तो वैसे एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन।
तो अगर वो थॉमस फ्रैंक या मैकेना या जो भी ये लिंक हो रहे मैनेजर्स, वो वापस आके स्टार्ट भी करेंगे, तो अगर वो स्ट्रगल करेंगे भी इन द फर्स्ट 2 मंथ्स, तो यू गाइस कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट। वो कोई गारंटी नहीं, जो तू बोल रहे क्या वो जितवा देते आके, कोई गारंटी नहीं है। एंड यू सेड इट ऑफलाइन एनीवेज कि डिपेंडिंग अपॉन द इंजरीज दैट यू गाइस हैड थ्रू आउट द सीजन, हाँ। उस पे बहुत सीजन फर्क पड़ता है। वो कल ही नहीं का नहीं नहीं, एग्जांपल है। वो पॉइंट तो है नहीं। राइट, हम बात करेंगे यूनाइटेड के बारे में, बट yesterday itself, जब उसकी मेन टीम जो, और मैं मेन डिफेंस लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिफेंस जब था उसका, क्लियरली दे वर एबल टू लाइक डोमिनेट, नॉट डोमिनेट, बट लाइक दे वर एबल टू प्ले गुड। ठीक है, सिटी वर वेरी बैड, बट यस, बट वो चेल्सी में भी उतने ही इश्यूज है। अगर जो तू एनकुंकू की बात कर रहा है, एनकुंकू अगर खेलता होता, चल मान भी ले, कितने गेम खेला होगा, 10 गेम खेला होगा, 10 की जगह वो 20, 21, 22 भी खेल लेता, तो भी कुछ तो फर्क पड़ता ना उस 10 गेम में। बिकॉज एनीवेज मैंने जितने गेम देखे थे जिसमें नहीं, एनकुंकू खेल रहा था, मेरा पॉइंट फर्क यही पड़ता था था। उससे। मेरा यही पॉइंट था कि मैं इंजरीज पे भी आ रहा था, पर तूने सही पॉइंट्स ले लिए। तो मेरा ये पॉइंट था कि अगर मैनेजर दैट वी आर टारगेटिंग और द मैनेजर दैट कम्स इन हैज अ बिगर एंड अ बेटर पेडिग्री देन पोचेटिनो, देन ओके फाइन, ठीक है। Somebody who, even I'm fine with starting from the scratch, but with a manager like Jose Mourinho, जो of course नहीं आएगा, starting with, even I would bring back Thomas Tuchel, but नहीं आएगा। But these kind of managers, if they come back, Xavi also I'm fine with it, कि at least उसने एक बड़े क्लब को तो संभाला है। He at least understand the pressure of it. Maybe उसने उतना अच्छा काम नहीं करा, maybe we might struggle to again finish on the top 4, but I think I would see still an improvement because Chelsea के साथ एक प्रेशर आता है। द मैनेजर जो अब लेके आ रहे हैं, आई एम फाइन। मैंने उनके स्टैट्स देखे, बहुत सारे लोग उनके स्टैट्स बोल रहे हैं कि यार ये मकेना ही हैज 75% एवरेज पोजीशन, और 13 या 14 गेम्स मतलब लूजिंग स्टेज से आपने जिताया है। बट वही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड यार, वो बंदा रीडिंग के साथ खेल रहा है। दे आर गोइंग टू, इप्सविच मैं इप्सविच की बात कर रहा हूँ, व्हेन दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट द टीम्स, समझ रहा है, अच्छा, इन चैंपियनशिप। वो बोल रहा हूँ कि ही इज प्लेइंग अगेंस्ट दोस काइंड ऑफ टीम्स यार। अब चेल्सी में देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, और कंसिडरिंग, और अगर अभी एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन ना बैक स्टेज, ठीक है, मैनेजर निकल गया, वील सी। और इवन इफ रोमन एब्रामोविच के एरा में भी ये सारी चीजें हो रही होती कि यही 4 मैनेजर्स टारगेट हो रहे होते, डिजर्बी का तो मेरे को लग नहीं रहा है। मैंने बहुत पढ़ रहा हूँ कि उसका आ रहा है कि वो ही इज द 4th और द 5th इन द शॉर्टलिस्ट, एंड दे डोंट बेसिकली वांट डिजर्बी। तो आई एम नॉट श्योर डिजर्बी आएगा कि नहीं, बट वही है कि ये सारे जो मैनेजर होता है, आई वुड हैव बीन फाइन अगर हमारी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रहती। द प्रॉब्लम इज कि अब कोई नया मैनेजर आएगा और उसको, पोचेटिनो बेसिकली क्यों निकला, सबसे बड़ा रीजन यही था कि पोचेटिनो बोला कि भैया तुम मेरे को थोड़ा सा बता दो कि तुम कौन से प्लेयर्स ला रहे हो, ये नहीं कि मेरे पीठ पीछे तुमने एस्टावा विलियन को साइन कर लिया, भैया 6-6, 7-7 राइट विंगर्स डाले हुए हैं। एक बार मेरे से पूछ तो लो कि मैं उसको खिला पाऊंगा कि नहीं, कि क्या करना है। और सबसे गजब की बात यह है कि जो टूचल जिसकी वजह से निकला था, वो रीजन ये था कि इनको चाहिए था टूचल का इनपुट। टूचल ने बोला मेरे को इनपुट मत दो, मैं कोचिंग कर लूंगा। पोचेटिनो ने बोला कि तुम मुझे इनपुट दो, और इन्होंने निकाल दिया। तो वही है कि इनका जो बैकएंड है, नहीं, बट वही है, उसमें 2 चीजें डिफरेंसेस है ना भाई। उस समय जो तुम्हारा बैकरूम स्टाफ था वो सेटअप ही नहीं था। दैट इज द रीजन टूचल का वो इनपुट मांगा जा रहा था। अब तुम्हारे उसमें ये सारे जो प्लेयर्स, मेरे को तुम्हारे नाम नहीं पता है, बट जो तुम्हारा बैकरूम स्टाफ है वो पूरा सेटअप है। तुम्हारा टेक्निकल डायरेक्टर है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, तुम्हारे सब चीजें सेटअप है उस एस्पेक्ट में। एक टाइम तो ये भी आया था कि टॉड बोली वाज लाइक मैनेजिंग दैट पार्ट ऑफ इट, और वो अब ऑब्वियसली हट चुका है बिकॉज अब नाउ लाइक द राइट पीपल आर इन द राइट पोजीशन। भाई मेरे को तो अभी एक हफ्ते पहले तो पता चला कि टॉड बोली इज नॉट द मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ चेल्सी एज वेल। तो आई थिंक उसका कुछ, वो ही इज द 3rd और 4th। हाँ वो ठीक है, बट इसमें तो वही बात है ना कि अल्टीमेटली तुम्हारे, मतलब तू सिटी और लिवरपूल, इनकी आर्सेनल का भी देख लेगा, उनके भी यही है।
technically everyone has their like the right people in the right positions. That's why they are kind of now you're seeing कि वो Liverpool City तो हम देख ही रहे हैं कि वो क्यों अच्छा खेलते हैं because of this reason only, because उनका काम ये नहीं है, पेप गार्डियोला और क्लॉप नहीं जाते रहते भाई कि हमको ये प्लेयर चाहिए, वो प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर चाहिए, वो नहीं करते। बोलते भाई हमारे पास ये डेटा एनालिटिक्स टीम है, हमारे बेस पे ये हमको सही बैठता है, तुम्हारा काम है एज अ कोच, तुम्हारा काम है इनको कोच करना, तुम्हारा इनपुट नहीं चाहिए मुझे कि भाई मेरे को एंटीनी चाहिए या मेरे को ये प्लेयर चाहिए, वो नहीं चाहिए मुझे। हमने अपना रिसर्च के हिसाब से ये प्लेयर्स लेके आएंगे हम, बिकॉज वी फील कि ठीक है पहले साल अगर स्ट्रगल करेंगे भी तो ठीक है, बट इट्स योर जॉब टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ देम। अगर वो भी नहीं कर पा रहा है तो फिर तो कोच में गड़बड़ है ही वैसे भी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर प्लेयर विल बी एबल टू रीच द पीक्स वेयर द व्हाटएवर दे आर एबल टू सी। अब मुड्रिक अभी तक मुड्रिक जितना दिखा है उसका कुछ भी पीक नहीं दिखा है। हालांकि वो आके बोलता है कि हाँ भाई मैं तो कर सकता हूँ, ये मैं वो कर सकता हूँ, बट कुछ भी दिखा नहीं है 2 साल में। आई हैव नॉट इवन सीन अ शेड ऑफ लाइक कि अरे भाई इसमें कुछ पोटेंशियल है, लगता ही नहीं है। द ओनली सी एच सी उसकी बस रनिंग है, दैट्स इट, द पेस है उसके पास, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें चेंज। और 2 साल में कुछ तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। हाँ देख वो पॉइंट सही है, बट यार अब ये भी तो सोचना कि एक बंदा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि एक 48 की स्क्वाड को तुम्हें मैनेज करना है, उसमें इंजरीज ये हो गई, प्लस जो बची हुई टीम प्लेयर्स हैं उसमें तुम एक सीजन तुमने लगा दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर दैट द प्लेयर्स ट्रस्ट ईच अदर, प्लेयर्स ट्रस्ट द मैनेजर, प्लेयर ट्रस्ट द सिस्टम। उसके बाद मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि भाई पोचेटिनो ने हाँ नहीं बोला तो ये प्लेयर नहीं आएगा, बट एटलीस्ट पोचेटिनो को ये बिना बता के इन्होंने विलियन को साइन किया हुआ है, और अब तो हमारे पास कोच है भी नहीं और माइकल ओलीजे भी साइन हो रहा है अपेरेंटली। अब ये बस मेरा ये पॉइंट है कि मैनेजर को एटलीस्ट ये तो पूछो कि भाई तुम इस प्लेयर को खिला सकते हो कि नहीं। यार टारगेट्स तो 3-4 होते हैं ना, मैनेजर का काम है प्रोफाइलिंग करना, आई अंडरस्टैंड दैट, उसको एटलीस्ट प्रोफाइलिंग तो करने दे कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि वी नीड अ सीडीएम, तो ठीक है गेट अ सीडीएम विदाउट इवन आस्किंग हिम कि भैया तुम्हें किस पोजीशन में स्ट्रेंथनिंग चाहिए, तुम्हें किस पोजीशन में नहीं चाहिए। जस्ट यू आर बेसिकली शविंग डाउन द प्लेयर ऑन हिज थ्रोट कि भैया हमने तो खरीद लिया है 70 मिलियन में खरीदा है, ऐसा भी नहीं कि 6 मिलियन में आया है कि नहीं भी खेला तो चलो ठीक है यार लोन के करके बेच देंगे जो चेल्सी करती थी पहले। ये 70 मिलियन का प्लेयर, 17 ईयर्स ओल्ड, नॉट प्रूवन एट ऑल, राइट, और अचानक से तुमने उसको ये भी बोल दिया कि भाई आप 70 मिलियन दिया है तो भाई हम उसको ऐसा लोन में तो नहीं भेज सकते, ही हैज टू बी इन द स्क्वाड, मे बी ही कम्स फ्रॉम द बेंच, ही हैज टू प्ले। अब वो खेलेगा तो वो बोलेगा भाई नॉनी मैडुएके को जो मैंने इतना चांस दिया है उसको क्या करेंगे। अभी केंड्री पायस करके एक है वो आ रहा है हमारा, आई थिंक 2-3 तो और हैं हमारे, एंजेलो एक और विंगर बैठा हुआ है जो अभी लोन से वापस आ रहा है। तो पोचेटिनो, भाई मैं भी मैनेजर होता ना, मैं भी नहीं संभाल पाता यार कि यार मतलब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। तो पोचेटिनो बोला कि एक काम कर, तो फिर मैं चले जाता हूँ, आप किसी और मैनेजर को लाओ जो ये हैंडल कर सकेगा, मेरे से तो ये हैंडल नहीं हो पाएगा कि आप बस मेरे को प्लेयर देते जा रहे हो। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे को, आई कैन अंडरस्टैंड कि इन द फ्यूचर ना, इन द नेक्स्ट 10 years फुटबॉल बदल जाएगा एंड द एंटायर पावर ऑफ द ट्रांसफर विंडो वुड बी ऑन द डायरेक्टर्स, स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, और जो हमारे ये जितने भी बाकी स्टाफ हैं, एंड मैनेजर बेसिकली वुड बी द कोच, द हेड कोच जो बोलते हैं ना, द वर्ड हेड कोच, वही होने वाला है। बट आई थिंक कि वो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि यार हम प्लेयर्स तो हम ही लाएंगे, नेगोशिएट भी हम ही करेंगे, बट हाँ हम तुम हमें ये बता दो कि तुम्हें कौन से एरिया के प्लेयर्स चाहिए ताकि हम उसको प्रोफाइल करना शुरू करें। अगर एक वन वे कम्युनिकेशन, आई डोंट थिंक एनी मैनेजर वुड सर्वाइव। आई डोंट थिंक अभी जो 4 मैनेजर्स आ रहे हैं उसमें से आई डोंट थिंक एनीबडी वुड सर्वाइव इफ दिस हैपेंस अगेन, लाइक यू आर जस्ट ब्रिंगिंग इन प्लेयर्स और मैनेजर को बोल दिया भाई खिला दो। ईदर मैनेजर इज कंप्लीट यस मैन, दैट इज व्हाट दे वांट कि यस सर बिल्कुल सर आज ही एंड व्हाटएवर ही इज डूइंग ऑन द पिच दे डोंट केयर, और एल्स कि भाई मैनेजर थोड़ा बैकबोन दिखाए कि नहीं हो पाएगा। अब समझ नहीं आ रहा है बिकॉज द रीजन पोचेटिनो वाज सैक्ड वाज दैट पोचेटिनो वाज शोइंग बैकबोन एंड दे सेड कि नहीं भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बैकबोन दिखा रहा है हमारे अगेंस्ट, भेज दो इसको। कोई मैनेजर अब बैकबोन भी ना दिखाया,
रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे ना भाई, रिजल्ट्स भी तो नहीं आएंगे आपके पास। देखो देखो तुम लोगों को एक चीज पे तो या तो तुम लोगों को ट्रस्ट, तुम लोगों को कहीं पर तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, या तो तुम सीधा बोलो एग्जैक्टली कि ठीक है, एग्जैक्टली या तो तुम छोड़ दो, वॉट एवर द क्लब इज डूइंग, लेट देम डू इट, और तुमको उसके लाइक कुछ ना कुछ तो तुम्हें दिखेगा इन लाइक नेक्स्ट 3-4 years, क्योंकि एकदम हाँ से अभी तो कुछ दिखने नहीं वाला है। और कहीं यार वही है ना कि और एक कहीं तो ना कहीं रिएक्शनरी और थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया, बिकॉज दे प्लेयर्स जो दे बॉट इन, आई थिंक काइसेडो, राइट। देख मैं जेन्युइन बता रहा, आई डोंट थिंक एंजो हैड अ गुड सीजन एट ऑल। आई थिंक ही स्कोर्ड वन फ्री किक, वो भी आई थिंक उसने एफ काराबाओ में मारा था, आई थिंक दैट्स ऑल ही हैड, दैट इज द ओनली गोल। और आई डोंट थिंक ही हैड एन असिस्ट, आई एम सॉरी, माइट हैव, but I don't think Enzo had a successful season. Apart from the Caicedo started very bad, but of course he finally kind of started uh, defending his price value. Mudryk, as you said, genuinely कभी कभार लगता है कि he could be a brilliant player, और उसी मैच में ही he does something feels like he is not a footballer. नोनी मैडुएके, हाँ he started improving a lot, but उसका mentals and he's still very kind of raw. तो आई वोंट से कि नॉनी मैडुके का हैड अ वेरी ब्रिलियंट सीजन। अब जैक्सन के स्टैट्स के हिसाब से तुम बोलोगे कि भाई जैक्सन ने 15 गोल मार दिए यार, तो भाई बढ़िया ही है। जिसने मैच देखा है रियलिटी में, ही नोज कि कितने, भाई वी लॉस्ट अ कैराबा कप जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। मैं अभी भी ये बोलता हूँ, वी लॉस्ट द कैराबा कप फाइनल बिकॉज ऑफ हिम। तो ही नेवर हैड अ गुड सीजन। जो उन्होंने मालो गुस्टो और कोल पाल्मर, आई थिंक ओनली दीज टू प्लेयर्स। अब पेट्रोविच यार, अब पेट्रोविच के बारे में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि he had a decent season. I don't think he is a brilliant keeper, but he had a better season than Sanchez. So ठीक है, उस हिसाब से मैं बोल दूंगा 3 प्लेयर्स हमारे आउट ऑफ 7। बट कोल पाल्मर तो आई थिंक ही इंडिविजुअली इतना ब्रिलियंट है कि आई थिंक ही वुड हैव गॉन टू एनी अदर टीम, ही वुड हैव डन द सेम, नहीं, नॉट फॉर द वो भाई चेल्सी। अगेन दैट इज हाइपिंग, टू बी ऑनेस्ट दैट इज ट्रू हाइपिंग। मैं लिख के दे सकता हूँ, दिस इज नॉट, ही इज नॉट गोना हैव दिस सीजन नेक्स्ट ईयर, नहीं होने वाला है वो। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, कंसिडरिंग he is given the kind of freedom that he was not getting under Pep, given that he उसको people understand कि basically यार we need to build our game around him. He should not be the part of the team, he should be the wheel, और हम लोग चढ़ जाए बस इस पे, राइट। एंड होते हैं कुछ बट ऐसे यार प्लेयर्स पता है जो फॉर्म ऐसा है। बट हाँ बस मुझे ये मैं लगता बस है। पॉइंट खत्म ही कर रहा हूँ शर्मा, बस एक मिनट। हम्म। तो मैं ये बोल रहा था कि भरोसा इन पे आ जाता कि यार, लगता कि यार ये कुछ सोच समझ के प्लेयर्स ला रहे हैं। एक तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है कि अंडर 21 अंडर 22 के प्लेयर्स भर दो पहले तो अपने क्लब में, एक यंग स्क्वाड विदाउट एक्सपीरियंस। सो दिस शोज दैट कि दीज डायरेक्टर्स डोंट हैव एक्सपीरियंस इन काइंड ऑफ बिल्डिंग अ टीम, or they don't have experience about the transfer business or a club business, how players need to be brought in। एक स्ट्रैटेजी होती है, हायरार्की होती है क्लब की। देयर आर प्लेयर, देयर आर इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स, देयर आर लेस इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स, और एक टीम लीडर्स होना बहुत जरूरी है। सम क्लब्स प्रेफर टू हैव 3 टीम लीडर्स, वी प्रोबेबली हैव ओनली 2, अब तो एक रीस जेम्स, और बेन चिलवेल तो वो तो पड़ा रहता है इंजरी टेबल में। तो रीस अब जेम्स भी तो मतलब पड़ा रहता है। रीस जेम्स भी पड़ा हाँ रहता है। वो भी वो ट्रू, मतलब पर रीस जेम्स क्या है कि यार ही इज द एकेडमी प्लेयर ना, ही इज द एकेडमी प्लेयर एंड द कैप्टन, तो उस सेंस में बोल रहा हूँ कि ही इज अ लीडर। बट मैं तो क्या बोल रहा था, आई मुझे ये डोंट, लगता है, आई हैवंट सीन द ट्रस्ट। मुझे ये लगता है जैसे पोचेटिनो जब आया था, आई थिंक नो वन ऑफ अस थॉट कि पोचेटिनो इज गोइंग टू बी दैट मैनेजर जो चेल्सी को नेक्स्ट 1 या 2 सीजंस में टाइटल टाइटल जिता जितवा देगा। देगा हाँ या बहुत ट्रू सारी ट्रू ट्रॉफीज जितवा देगा, राइट। आई थिंक द ट्रू। ओनली प्रेशर ही हैड वाज बिकॉज चेल्सी ऑन देयर ओन स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, जिसकी वजह से पोचेटिनो के पास स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ये प्रेशर था बिकॉज ऑफ इंग्लिश मीडिया, बिकॉज ऑफ द राइवल फैंस, कि यार चेल्सी हैज टू बी टारगेटिंग द प्रीमियर लीग बिकॉज इतना स्पेंड कर दिया उन्होंने, पैसा लगा दिया। दैट नेवर हैपेंस। I think nowadays spending money is not directly proportional to how your performance will be on the रिजल्ट। field. ठीक है, तो वो तो कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हाँ, दे स्टार्टेड बैड, बट उसके जो मेन प्लेयर्स थे वो इंजर्ड थे। एंड जो ऋषभ मुझे लग रहा है वो बोलने का ट्राई कर रहा था, वो यही बोल रहा था अपने प्रीवियस पॉइंट में कि देयर हैज टू बी दिस पेशेंस दैट नाउ चेल्सी हैज टू शो, वेयर दे डोंट गो आफ्टर सक्सेस जो कि अभी मिल भी नहीं रहा है।
with all this impatient activities that they're doing. They have to be patient, they have to trust a manager, and manager को time दो to gel in with the players, to bed in with the players, and then 2 साल बाद एक्सपेक्ट कि यार हाँ, अब तो मुझे ट्रॉफी ला के दे। अगर 2 साल बाद भी वो इम्प्रूवमेंट्स नहीं होती है ऑन द फील्ड, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि चल ठीक है यार, मैनेजर से इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। सिमिलरली फॉर टेन हाग ऑल्सो, आई थिंक टेन हाग स्ट्रगल्ड दिस सीजन बिकॉज प्लेयर्स उसके इंजर्ड थे। इस सीजन जो स्टैट मैंने देखा, आई थिंक यूनाइटेड हैड द वर्स्ट इंजरी रिकॉर्ड ऑफ ऑल द टीम्स। चेल्सी से भी खराब था। तो मुझे लगता है टेन हाग को सैक करना वाज नॉट द राइट थिंग अगर वो होता है, बिकॉज प्लेयर्स ही नहीं है राइट टाइप ऑफ प्लेयर्स जो खिलाना चाहता है। तो ही कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम उससे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट करेंगे। तब भी उसने कुछ बीच में मैचेस में अच्छा परफॉर्म करवा दिया था। हमारे अगेंस्ट तो काफी अच्छा करा था लिवरपूल के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है आई थिंक चेल्सी नीड्स टू शो दैट पेशेंस कि यार जो मैनेजर अब आ रहा है, एंड इसीलिए मुझे लगता है अ होजे मोरिनियो टाइप मैनेजर और अ थॉमस टुकल टाइप मैनेजर इज नॉट द राइट टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर चेल्सी राइट नाउ। वो तो ऑब्वियस है, बिकॉज वो तो पहली बात तो इनके साथ इनका बनेगा नहीं, पहली बात तो बोर्ड के साथ। और दूसरी चीज है कि इनको एक वो भी सेम है, शॉर्ट टर्म के लिए ही ला रहे हैं, बस एक सीजन के लिए ला रहे हैं जब तक कोई अच्छा मैनेजर अवेलेबल नहीं हो जाता। एंड अभी के टाइम में यू सी ऑल द क्लब्स they are going after the younger managers because वो जो elite managers थे ना, they are now phasing out धीरे धीरे। एंcelotti हो गया, पेप गार्डियोला हो गया, क्लॉप हो गया, और all these managers are now phasing out. That's why Arteta is now in the business. रॉय हडसन हो गया, सैम एलरडाइस हो गया। सैम एलरडाइस वही बोलने वाला था। सैम एलरडाइस अभी घूम रहा होगा गाड़ी में। तो आई थिंक अब जो क्लब्स है ना, they have now realized that कोई भी रेडीमेड मैनेजर बैठा नहीं है अवेलेबल। जिडान जैसे मैनेजर्स 2-3 हैं जो वो भी गारंटी नहीं कर सकते कि तुम्हें सक्सेस दिलवा के ही रहेंगे। तो आई थिंक दैट्स व्हाई उनको भी क्या ही बोल सकते हैं भाई, वो जिदान सॉरी बट जिदान भी मतलब मैनेज करते हैं उसको 3-4 साल हो चुके हैं। हाँ, करा नहीं है उसके बाद। who's guaranteeing कि भाई वो अब आके एकदम से मचा देगा वापस तहलका, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। दूसरी चीज भी ये है कि अगर इनको ये लग रहा है ना कि हमारी जो पास्ट थी कि भाई मैनेजर सैक, नेक्स्ट सीजन चेल्सी टाइटल और सम काइंड ऑफ ट्रॉफी, फिर अनदर ड्रॉप ऑफ मैनेजर सैक, टाइटल इन। द डिफरेंस इज बिटवीन द प्लेयर एंड द स्ट्रक्चर विद इन द क्लब। यहाँ पे विद द काइंड ऑफ प्लेयर दैट दे हैव, अभी भी ये सीजन तो इनको लगा है प्रीमियर लीग को समझने में। अगला सीजन पोचेटिनो के साथ इनको लगता मैच्योर होने में, और फिर प्रोबेबली थर्ड और फोर्थ सीजन में दे वुड हैव काइंड ऑफ गॉन फॉर द टाइटल। मेरे को तो लग रहा है 5-6 साल लग जाते हैं हमें टॉप 4 में कन्विंसिंगली पहुंचने के लिए कि भाई अब वी आर टॉप 4, नाउ वील गो फॉर द टाइटल। बट अभी क्या है कि अभी वो प्लेयर्स नहीं है। अभी यार खुद ही सबने देखा है कि पिछले 5 गेम में तो ऐसा लगने लगा है कि पोचेटिनो की बात सुन रहे हैं ये लोग। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था अपने लिए खेल रहे हैं। अब एक नया मैनेजर आएगा। मेरा पॉइंट बोलने का ये था कि हाँ, पेशेंस भी है, प्लस आई थिंक इट्स बेटर टू अपॉइंट अ न्यू मैनेजर जो यंग मैनेजर है, बिकॉज उससे क्या होता है, यू आर रेडी टू गिव हिम टाइम ऑल्सो एंड ही कैन इम्प्लीमेंट हिज न्यूअर टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज एंड स्ट्रैटेजीज जो अब ओल्ड जो मैनेजर है उनका हो चुका है खत्म। तो इसलिए मुझे लगता है मोरिनियो टाइप मैनेजर आना चाहिए फॉर चेल्सी। अच्छा, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ। अब बता, नेक्स्ट सीजन चेल्सी का टारगेट क्या होगा प्रीमियर लीग में, कंसीडरिंग दे फिनिश 6th? ठीक है, अब यूरोपा नहीं मिला यूरोपा। व्हाट शुड बी द टारगेट? टॉप 4 चैंपियंस लीग, टॉप 6 टारगेट तो इस साल भी वही था। टारगेट चेंज नहीं हो सकता यार शर्मा, क्या बात कर। टॉप 6 तू बोल रहा है, चेल्सी का टारगेट है टॉप 6। लास्ट ईयर भी 11th फिनिश करने के बाद टारगेट टॉप 4 ही था उनका, टॉप 6 नहीं था उनका। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन अगर चेल्सी अगले साल भी टॉप 6 में आएगी तो दैट्स एन ओके सीजन, बिकॉज अब तुम्हारा मैनेजर फिर से चेंज हो रहा है। अगर पोचेटिनो होता तो आई वुड हैव सेड कि यहाँ से ही हैज टू टेक देम टू टॉप 4, बिकॉज अब क्या हो रहा है, तुम्हारा फिर से रिफ्रेश हो रहा है सारा। ठीक है, ओके। अगर पोचेटिनो होता तो मैं बोलता कि टॉप 4। ठीक है, वो पॉइंट ठीक है कि अब नया मैनेजर आ रहा है तो टारगेट थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, बट हाँ, मतलब सिमिलर पोजीशन फिनिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बट वही है ना कि अब हमारा बोर्ड अगर फिर से रिएक्शनरी हो गया, या फिर हम लोग आगे चलो हमारा सीजन फिर से ऐसा ही गया और हमने लास्ट में वी फिनिश 6th और 5th, तो भी कोई
I wouldn't say कि यार इस manager is the I could see कि हाँ there was a change because that would be the same cycle again कि यार तो ये वही तो basically would क्लब be के a ओनरशिप के pattern. ऊपर है ना दैट इसमें हाँ देख फैंस कुछ नहीं कर सकते हैं दैट दे हैव टू बी पेशेंट फैंस के पास तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ फैंस तो फैंस बस जो उनके क्या है पैसे देने उनको के लिए तो रह गए हैं राइट हाँ बट अब ओनरशिप के ऊपर ये है कि उनको पेशेंट रहना पड़ेगा तो दैट्स वही मुझे उनको लगता है ये कि उनको ये समझना पड़ेगा ना कि यार तुमने $1 बिलियन खर्चा करा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इमीडिएटली मिल जाएगा सब कुछ अगर ये होता तो फिर तुम खरीद ही लो ना टाइटल भी खरीद लो सिर्फ प्लेयर्स खरीदने टाइटल तो से खरीदना थोड़ी ना मिल जाता है बट प्लेयर्स टाइटल खरीदे भी हैं कौन तो खरीद रहा कैसे है खरीदे हैं तुमने खरीदे सारे यंग कैसे प्लेयर्स खरीदे हैं हु आर सारे नॉट यंग प्रूवन प्लेयर्स और द फैक्ट इज कि हमने 1 बिलियन खर्चा किया है बिकॉज सारे यंग प्लेयर्स है कोई 25-26 का इवन अ स्क्वाड प्लेयर भी होता ना ही वुड हैव कम इन विद 30 मिलियन 40 मिलियन एंड ही वुड हैव डन द जॉब बट गैलेगर डिड द प्रॉब्लम इज कि नहीं बट हमारे पास तुमने गैलेगर तुमने जैसे और प्लेयर्स नहीं थे प्लेयर्स तुमने प्लेयर्स लिए हैं टू नॉट टू विन टाइटल्स तुमने प्लेयर्स लिए हैं कि उनकी वैल्यू बढ़ेगी टू बाद में मेक प्रॉफिट एंड यू लर्न मेक प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉम ना देम हाँ हाँ वो वही है तो नन ऑफ द हमारा प्लेयर्स वाज क्लब बॉट की हाँ तो वही बट चीज ये है इशू ना है ब्रो बट ये भी है कि अगर हम कुछ जीते नहीं कभी लेट्स से इन द नेक्स्ट 8 इयर्स वी डिडंट विन एनीथिंग तो जो हमारा जो क्लब रेपुटेशन होता है ना क्लब रेपुटेशन कोएफिशिएंट और एक क्लब स्टैचर होता है वो तो गिर जाएगी क्लब की वैल्यू भी गिरेगी बिकॉज वी आर नॉट विनिंग एनीथिंग राइट तो ये दिस इज काइंड भाई गिरती है यार अभी वैल्यूएशन आया है हम कितने साल हो गए हमको जीते हुए 12 साल किसको किसको यूनाइटेड को वी आर स्टिल द मोस्ट वैल्यूड क्लब इन द वर्ल्ड 9.03 9.04 बिलियन की वैल्यूएशन है मड्रिड से ऊपर है अभी हम और मड्रिड कितना जीत चुके हैं पिछले 12 साल ऐसा कोई मतलब नहीं है उससे वैल्यूएशन से हैज नथिंग टू डू विद इट वैल्यूएशन कुछ नहीं करने वाली तुम लोग रेलीगेट भी हो जाओगे तो भी वैल्यूएशन नहीं करने वाली तेरे को लगता है सिटी पे भाई चार्जेस लग ऐसी जाएंगे बात सिटी कर की रहा है वैल्यूएशन गिर जाएगी सिटी के अगर चार्जेस लग जाते हैं रेलीगेट तो सिटी की वैल्यूएशन ही गिर भाई जाएगी उसकी रेपुटेशन पे बहुत बड़ा हिट आने वाला है रेप्यूटेशन की बात नहीं कर रहा तूने वैल्यूएशन बोला रेप्यूटेशन मैंने की बात नहीं कर दोनों रहा चीज बोली है मैंने वैल्यूएशन एंड रेपुटेशन बट दोनों चीज बोली रेप्यूटेशन तो उसमें रियल फर्क मैड्रिड आएगा नहीं बट आई थिंक ऋषभ रियल मैड्रिड नंबर 1 हो गया यूनाइटेड सेकंड हो गया मैं ये नहीं बोल रहा कि वैल्यूएशन गिर जाती है जो भी है परफॉर्मेंस से ऑन द फील्ड बट फिर भी दे आर वैल्यूड एट 9 हाँ समथिंग बिलियन राइट व्हिच इज to in terms of if you're measuring success is trophies then there is no way our valuation should be 9 billion अरे ब्रो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्लब में प्लेयर्स नहीं आएंगे या प्लेयर्स नहीं जाएंगे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ जीते नहीं जो प्लेयर की वैल्यू है वो गिरेगी थोड़ी कम होगी तो अगर आपको प्रॉफिट भी कमाना है तो उसकी स्ट्रैटेजी भी तो आप गलत ले रहे हो ना वो तो है ही कि तो आप ऑब्वियस सी बात है वो बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जीतोगे नहीं एंड जस्ट फॉर द प्रॉफिट तो वो भी नहीं मिलेगा आपको आगे जाके वो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा दैट इज माय पॉइंट यार ठीक है चेल्सी पे काफी बात हो गई एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं अंशुमन फिर आगे बढ़ते हैं अरे अब होती रहेगी अब हु डू यू वांट टू बी आगे करते हैं द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ चेल्सी मतलब ये नहीं बोलियो कि कौन मोस्ट लाइकली है बट फ्रॉम द अवेलेबल मैनेजर मैं क्या चाहता हूँ अच्छा हाँ फ्रॉम द अवेलेबल मैनेजर जो टारगेट्स पे है राइट जो हमने जो शॉर्टलिस्ट कोई कर भी हो रखी है सकता है जो आई वोट अंशुमन यही कर सकता है क्लब को मैनेज भाई मैं कर रहा हूँ एफएम में और आई एम स्ट्रगलिंग बट टू बी ऑनेस्ट वैसे ठीक क्या है है वैसे तो भाई मेरा जेन्युइनली मेरा ये था कि ओजे मोरिन्यो एंड बिफोर यू से एनीथिंग कि यार ये ओजे मोरिन्यो बायस के लिए कर रहा है नहीं बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स दैट वी हैव एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ टेम्परामेंट एंड द मेंटालिटी ऑफ दिस प्लेयर्स ना इनको कोई ऐसा मैनेजर चाहिए जो इनको थोड़ा वापस संभाल सके उनको एक लाइन पे ला सके और उनको बोले कि बेटा हो गया जो मस्ती करनी थी सोशल मीडिया में जिसको निकोलस जैक्सन पता नहीं कौन से वो एस्ट्रिड को मैसेज करे जा रहा है ये सब हो गया बेटा तुम लोग का हाँ अरे बहुत सारे हुए हैं भाई कांड तो ये सब तुम्हारा हो गया मोरिन्यो ओनरशिप के साथ हैंडल कर पाएगा ये चीज बिकॉज वो नहीं कर वो तो मैं चाहता हूँ ना यार कि वो आए फीपेबल नहीं है मैं जेन्युइनली बता रहा ये जो 4 है ना इसमें से मैं फ्रैंक नहीं चाहता मैं ये बता सकता हूँ कि मैं किसे नहीं चाहता हूँ ऐसा सिचुएशन मेरा हो गया है कि मेरे को थॉमस फ्रैंक
अच्छा अबे नहीं, थॉमस अरे फ्रैंक भाई, नहीं अच्छा फ्रैंक लैम्पार्ड वापस, अगर फ्रैंक लैम्पार्ड आ गया फिर ना आ गया वापस, फिर आ गया छोड़ फ्रैंक दो भाई, लैम्पार्ड क्लब छोड़ दो, सब लोग देखना, भाई बट अगर मुझे फ्रैंक भाई मैं एक लैम्पार्ड आ सच्ची गया कौन सी बताऊं थी मैं सच्ची बताऊं मुझे लगता है थॉमस फ्रैंक इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल चेल्सी के लिए बेस्ड ऑन जो because उसकी he has kind of टैक्टिक्स had हैं, the बेस्ड ऑन जो उसका consistency एक्सपीरियंस। हाँ, जो उसकी है जो उसका गेम स्टाइल है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, थोड़ा अटैकिंग ज्यादा है नो, बट उसके सेंस में बोल रहा हूँ, एंड ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ प्रीमियर लीग। बट वही चीज है कि ही इज नॉट अ बिग नेम जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करवा देगा कि हाँ यार बहुत ही बड़े नाम साइनिंग्स वो करवा देगा, मैं बट एक और स्टेबिलिटी। रीजन है व्हाई आई डोंट वांट मैनेजर्स फ्रॉम द मिड टेबल्स इज जो हम लोग बहुत पास्ट में हम देख चुके हैं यार कि यूनाइटेड के साथ तो सबसे बड़ा एग्जांपल था डेविड मॉयस आ गया could not handle the pressure right could not handle the kind of players that he had एक मैं बताता हूँ ना द सक्सेस इन लोग का कैसा क्या होता है ना बिकॉज दे आर स्टिल हैव अ कैप they have a cap on what kind of players they need to get wage का cap होता है इन सारे क्लब्स के पास तो बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी बैलेंस्ड लेवल they don't have a player की जिसका पोटेंशियल फूट जाएगा अभी we have to build them up they have a certain kind of player who are kind of inbuilt play at that level उनको they need to have be physically dominant they might not be very technically good क्योंकि चेल्सी में क्या है ना there are lot of players who are not very good mentally जिनकी मेंटली अभी दे डोंट हैव बेटर कंसंट्रेशन बट दे आर वेरी गुड टेक्निकली और उस चीज को मैनेज करने का मेरा पॉइंट है कि गेट अ मैनेजर हु हैज काइंड ऑफ हैड दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स बिफोर हैव डेल्ट विद दीज काइंड ऑफ प्लेयर तो नहीं जनरली बट बता दो तुझे मैं तुझे स्टुटगार्ट का ये जो मैनेजर है ना जो जो है क्या क्या नाम है होनेस होनेस हाँ, ऐसे होनेस जो भी ना नाम है हाँ। आई वुड रादर टेक हिम rather than ये चैंपियनशिप के मैनेजर्स आई डोंट वांट चैंपियनशिप के मैनेजर भी they might be very good man मैं कुछ obviously मैंने चैंपियनशिप ना देखा है इस बार क्योंकि नॉर्विच ने कुछ किया नहीं तो मेरे लिए चैंपियनशिप डज नॉट मैटर एनीमोर बट वही है कि बट ये चैंपियनशिप के मैनेजर्स ना अभी जिस प्रेशर में हम हैं वी आर नॉट फिनिशिंग टॉप फोर की आ जाएगा बिकॉज अभी क्या है कि अभी उल्टा प्रेशर आ गया है कि भैया तुम्हें लाना ही लाना पड़ेगा एक चैंपियनशिप ऑफ मैनेजर्स गेटिंग इनटू द स्ट्रक्चर विद द काइंड ऑफ प्लेयर्स आई डोंट थिंक कि एक कोई भी चैंपियनशिप मैनेजर चेल्सी संभाल सकता है चलो ठीक है, ये मुझे बस ये लास्ट पॉइंट में बोलता हूँ, मुझे लगता है आई थिंक मिड टेबल क्लब्स या चैंपियनशिप मैनेजर्स खराब नहीं होते हैं, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस बेसिस जो उनका लेवल है करंटली। डेविड मॉस जब आया था आई थिंक यूनाइटेड फैंस एंड यूनाइटेड के जो भी बोर्ड था दे एक्सपेक्टेड द सेम टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी जो एलेक्स फर्गसन के टाइम पे था, and that's why that didn't go well. I think David Moyes was a good high recruitment. It's just that timing and जो डेविड मॉयस का तो हमेशा expectations थी। बोलते हैं ना उसको टाइम नहीं दिया हाँ मैं तो वही अभी ना बोलता हूँ भाई, expectations मतलब मैं तो अभी बोलता हूँ भाई कि उसको टाइम देना चाहिए था, अगर टाइम एक सीजन और मिलता उसको, ही कुड हैव डन अ फ्यू थिंग्स भाई। यार ये आर्टेटा को देख लो। हाँ तो वही ना, तू आर्टेटा छोड़, तू ऐसे तो फिर ऐसे तो गार्डियोला साको जाने जीता पहले सीजन में, 4th फिनिश किया था उसने। हाँ तो फिर क्या ये तो वही मैं कह रहा हूँ, I think क्लॉप स्ट्रगल नहीं कहता इन टर्म्स ऑफ, क्लॉप स्ट्रगल किया था इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग इन द टेबल, बट उसकी परफॉर्मेंसेस ऑन द पिच नेवर लाइक सेड किया भैया परफॉर्म नहीं कर रहा है। वी सॉ कंसिस्टेंटली उसकी परफॉर्मेंसेस हमेशा अच्छी थी, बट एज सून एज दैट वन सीजन वेयर ही साइंड वो कोटिन्हो के यार जो पर ये पैसों है से ना तुमने ब्रो कि एलिसन तुमने साइन किया, तुमने वो कौन सा एक और Van Dijk। साला साइन किया था, वैन डाइक साइन किया था, ये सब तुमने एक साथ एक ही सीजन में साइन किए थे शायद। उसी एक सीजन में तुम्हारा पूरा सीजन बदल गया था, उसके बाद यू हैव बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, एक दो बट सीजन वही ना कि ऑब्वियसली बड़े रहे, बट हाँ वहां पे द मैनेजर एंड द बोर्ड वेर इन सिंक दे वर इन सिंक कि जो प्लेयर्स आए रहे हैं फ्लॉप उनको खिला सकता है कि नहीं लाइक जनरली बता रहा हूँ प्रॉब्लम तो हुई है माने और साला में एक कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं बीच बहुत ज्यादा जिसकी वजह से मे भी माने का रीजन था निकलने का क्योंकि मेरे को बहुत जनरली याद है कि एक पॉइंट पे साला वाज प्लेइंग एज अ इन्वर्टेड विंगर हिज पॉइंट वाज टू क्रिएट और सडनली ही वाज प्लेइंग एज एन इन्वर्टेड फॉरवर्ड क्या भैया अब तो बस गोल्स ही मारने मेरे को और वहां से माने वाज ऑलरेडी बॉट इन टू डू दैट तो दे हैड द काइंड ऑफ क्लैश तो ये स्ट्रगल समझ आता है बट स्टिल गार्डियोला एंड क्लॉप दे बोथ हैड द काइंड ऑफ से इन द बोर्ड कि आई नीड दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल ऑफ अ प्लेयर तुम कोई भी प्लेयर लाओ
इसमें ये चीजें तो बहुत जरूरी होनी चाहिए, मे बी क्रॉसिंग अच्छी होनी चाहिए, मे बी प्ले मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सब अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, पैसा तो हमारे पास है, हम आपको वैसा ही प्लेयर लाके देंगे जैसा प्लेयर चाहिए। हाँ मे बी नहीं वो एग्जैक्ट प्लेयर नहीं चाहिए था, बट उस एट्रीब्यूट का प्लेयर तो उन्हें मिला। तो उस सेंस में यस दे हैड द सक्सेस। और जो पहले सीजन में इवन गार्डियोला फिनिश 4th, मैच दिख रहा था, फील्ड पे दिख रहा था, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ ह्यूज चेंज बिटवीन व्हाट सिटी वाज प्लेइंग। क्योंकि अगर गार्डियोला पहले, सिटी वेर आल्सो काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी में जा रहे थे। वो मैंचिनी के बाद पेलेग्रिनी आया था, पेलेग्रिनी भी आई थिंक 2 साल में सैक हो गया, है ना? तो वो भी थोड़े से एक टर्मोइल में जा रहे थे। तो वही है कि इन द एंड बोर्ड की बैकिंग किसी भी क्लब को स्टेबल बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनका रहता है भाई। रोमन अब्रामोविच वाज एन अनोमली जो करता था कि सैक कर देते हैं, हम ले आते हैं। और उसने क्या है ना, हम सबकी कंडीशनिंग भी बिगाड़ दी थी कि इतने सारे चेल्सी फैन जो बीच में, मैं खुद इतना रिएक्शनरी था पिछले सीजन, ये सीजन में दिसंबर के वुल्फ से जब हम हारे थे ना भाई, उस टाइम के बाद तो मेरा हो गया था कि ये पोचेटिनो की शक्ल नहीं देख सकता मैं फील्ड पे अब। बट ले आया ना भाई, वो एंड में ले आया, और एंड में मेरी भी थोड़ी बैकिंग रह गई कि नहीं भाई ठीक है, लास्ट में दिख गया कैसा खेल रहे हैं, लेट्स बैक हिम। अब पॉच आउट करने का फायदा नहीं है, अगर करना होता तो वो कब का छोड़ के जा चुका होता, या फिर टीम वुड हैव फिनिश्ड 10th और 12th। दे डिड नॉट, दे फिनिश्ड 6th। तो देयर वाज अ प्रोग्रेस, आई वुड से। बट वही है कि वो प्रोग्रेशन वाज नॉट द काइंड ऑफ प्रोग्रेस दैट द बोर्ड वांटेड। उनको टॉप 4 चाहिए था ऐसे प्लेयर्स लगे, तो बहुत चलो ठीक डिसफंक्शनल है। स्टेट है। लेट्स सी बाय व्हाट द वे द न्यू मैनेजर ब्रिंग्स इन। साउथहैम्पटन पता वापस नहीं। आ गई प्रीमियर लीग में, दे आर बैक, यस हाँ दे आर बैक, है ना? हरा दिया, लीड्स को हरा लीड्स दिया। को हरा दिया उन्होंने। लीड्स हाँ, रहेगी, एक और साल रहेगी। एंड आई थिंक अब तो साउथहैम्पटन के नहीं भाई, सारे अब प्लेयर्स तो वो लीड्स के प्लेयर आ जाएंगे भाई, वो नॉन्टो वोंटो थे ना उनके अच्छे प्लेयर्स, बैमफोर्ड बैमफोर्ड में लग रहा है आ जाएंगे प्रीमियर लीग में अब। हो गया हाँ उनका। अरे इनको वो नहीं है, वो जो होता है ना, क्या नाम है उसको, जब आप पहली बार रेलीगेट हो जाते हो तो यू गेट सम अमाउंट ऑफ मनी टू हेल्प योर सेल्फ कम पैराशूट, बैक। पैराशूट पेमेंट्स। हाँ पैराशूट, वो खत्म हो गया ना, अब नहीं मिलेगा इनको। अच्छा, मुझे नहीं हाँ पता था इसलिए ये। तो, हाँ इसलिए तो बहुत सारे जो, अगर आप इमीडिएटली अगर आप नहीं कर पाते ना, तो दे फेल ऑफ, दे रियली फॉल ऑफ डाउन द अभी लैडर। यही से सनडरलैंड सबको निकल मिलने वाला गई। है, ये बर्नली लूटन सबको मिलेगा, शेफील्ड को सब वापस हाँ इतने बर्नली पैसे मिलेंगे लूटन सबको प्रीमियर लीग मिलने में। वाला है। बट अब बर्नली तो तो लास्ट पता वो तक क्या नहीं कौन क्या कहते कौन हैं गए ना करेगा। थे? वो, लीड्स ही तो गई थी ना, तो 2 क्लब तो वापस आ गए 3 में से। लीड्स, साउथहैम्पटन और लेस्टर, हाँ, तो 2 तो वापस आ गए। दो आ गए वापस। 2 वापस आ गए। और और एक लीड्स इप्सविच है। गई भाई, अब लीड्स को बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, बिकॉज अब उनके प्लेयर्स टिकेंगे नहीं, उनके वेजेस नहीं होंगे इतने देने के लिए। पहले पैराशूट मनी से वो वेजेस दे देते थे, प्लेयर्स रोक लेते थे। अब वही है, देखते हैं क्या होता है। चलो डैनियल आगे बढ़ो, जेम्स आगे भी है बढ़ो। यहाँ पे लीड्स में। हाँ, एनीवेज चलो ठीक है यार। एक चीज, कल हम मैच देख रहे थे तो मैंने, आई थिंक हमारी बात भी हुई थी ग्रुप में, आई थिंक कल के जो मैच था बिटवीन यूनाइटेड एंड सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऋषभ फॉर द एफए कप विक्ट्री। थैंक्स थैंक्स बट आई थिंक कल के मैच के सबसे बड़े लूजर्स तो आई थिंक चेल्सी थी, दैट बैठे वो बैठे मैच के बाद भी चेल्सी की बात हो रही है, उसके बाद भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन यूरोपा चेल्सी का। लीग से कॉन्फ्रेंस में भाई चले गए। हम इस लेवल पे गिर चुके हैं कि हमसे खुद से तो कुछ नहीं होना। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिटी और यूनाइटेड में से कोई हमें फेवर करे? वो भी भाई दूसरे मतलब एक टूर्नामेंट में। दूसरे टूर्नामेंट में हमारे राइवल्स हमारी हेल्प करते भाई, और वही हुआ, यूनाइटेड जीत गई। तो प्रॉब्लम तो मेरे को दोनों क्लब से हो गई। अब मेरे को अब सिटी से इतनी बट प्रॉब्लम नहीं थी जेन्युइनली पहले, अब तो सिटी से बहुत बट प्रॉब्लम हो गई है मेरे को कि साले तुम लोग बाहर से बाहर ही नहीं है, हाँ, वो तुम लोग पार्टी वही चल रही वही थी ना, एंजॉय हैंगओवर कर। में थे वो। हाँ उनके पार्टी चल रही थी, वो भाई ग्रिलिश को तो लाया नहीं वो, ग्रिलिश तो टुन बैठा हुआ था बेंच पे। बट यूनाइटेड की बात करते हैं। ऋषभ, व्हाट इज योर take on the season? I know injuries थी, but I think still we were talking कि Ten Hag has shown that improvement. But do you think कि अभी भी the jury is still out कि can he perform to that level कि United को वो
टाइटल रेस वाले उसमें पहुंचा पाए, टॉप 4 कंसिस्टेंटली करवा पाए. आई थिंक बिकॉज वी आर सीइंग दैट इनियोस जो भी जैसे भी बोलते हैं कंपनी का नाम, और जिम रैटक्लिफ, सर जिम प्लीज रिस्पेक्टफुली सर जिम रैटक्लिफ, आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी better than Glazers, that he understands कि backroom staff is important, the director of football is important, and he's trying to hire the right set of people. I think मुझे जो सुनने में आया था, he tried to hire Michael Edwards also. Yeah. Or there were conversations with Michael Edwards also. But next season, I think if Ten Hag stays, I think he'll have a better backing in terms of what players he's getting, what profile of players he's expecting, and what profile of players there's going to be hired by United. I think Varane निकल जाएगा, Casemiro निकल जाएगा. बट मेरे हिसाब से जो अंशुमन जो सॉरी बोल कंप्लीट कर ले. नहीं, मैं बस यही बोल रहा था. आई थिंक अ लॉट ऑफ योर डेडवुड लाइक Varane हो गया, Casemiro हो गया, they will be going out. Amrabat didn't work out, so he'll also be going back. So वो तो लोन now ही you है, have that. हाँ, लोन में था तो he's going back. But I think काफी हद तक तुम्हारा वो जो डेडवुड वाला जो सिचुएशन था, that is being cleared out. Maguire I think has started performing well, so that's not a requirement कि उसको बेचो. The only issue is with Rashford, I think जो थोड़ा सिचुएशन है कि उसको कैसे करवाना है आगे. बट तुझे क्या लगता है अबाउट द सीजन, अबाउट हाउ इज इट गोइंग टू बी नेक्स्ट सीजन इन द प्री सीजन? देख, आई थिंक जो उसने प्री सीजन जो उसने साइनिंग्स की थी, ठीक है, एंटनी तो लास्ट ईयर था, सॉरी, बट ओनाना जो मेन था उसका साइनिंग, राइट, लाइक वेयर वी आर लाइक ठीक है, इसको ही वांट्स टू प्ले फ्रॉम द बैक, एंड ही इज ऑलवेज सेड इट कि भाई ही वांट्स टू मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड द बेस्ट ट्रांजिशन टीम इन फुटबॉल, राइट, व्हिच यू कैन सी इन द गेम्स. बट वो गेम्स में इतनी वी हैव, मेरे हिसाब से होता है जब अगर तुमको दिख रहा है ना, मतलब 2 महीने हो गए खेलते हुए और तुमको दिख रहा है कि हर टीम तुमको एक तरह से बटर के थ्रू जो होता है, मतलब नाइफ थ्रू बटर होता है ना, एकदम वैसा काट के निकल रही है बिल्कुल, और तब भी तुम कुछ चेंज नहीं कर रहे, which I feel at a point I was getting very irritated to it, but then धीरे धीरे I felt like कि ये सही है, एटलीस्ट क्या कर रहा है ये कि एटलीस्ट ही इज पुटिंग दैट मेंटालिटी इनटू एवरी प्लेयर. अगर हमारे पास वो जो हमारे जो एकेडमी प्लेयर्स भी खेले हैं कुछ in the matches, right, at least he is making sure कि मेरी ये playing style है, this is what I want, this is what I see as like the future of United. अगर वो obviously वो तो दूसरी बात है कि वो टिकता है नहीं टिकता अलग बात है, but at least he's putting that like kind of mentality into each and every player, because that I drew conclusion from what Klopp and Guardiola do, right. अगर उनके वो प्लेयर जो तुम्हारे वो सीजन में जिसमें सब इंजरी हो रहे थे वो, राइट, जब तुम्हारा आई थिंक दिस वाज आफ्टर द लीग टाइटल दैट यू वन, राइट, उसमें भी यही था. एटलीस्ट आई डिड नॉट सी कि अरे अब मेरे पास प्लेयर्स नहीं है, और वो जो तुमने पता नहीं शाल्के वाल के से पता नहीं कौन से प्लेयर्स लेके आए थे तुम लोन पे, एटलीस्ट ही वाज नॉट लाइक कि भाई मैं अपना मेंटालिटी चेंज कर रहा हूँ, प्लेइंग स्टाइल मेंटालिटी सब मेरा सेम ही रहेगा, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट, भले मैं हारूं मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे. तो एटलीस्ट दैट इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट, राइट, which is good to see. प्लेयर इंजरीज तो ऑब्वियसली हैज प्लेड अ पार्ट. भाई हमारे पास, मेरे को लगता है पूरे सीजन ही हमारे पास लेफ्ट बैक नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. लाइक धीरे धीरे बीच बीच में लुक शॉ आया, बट लेफ्ट बैक था ही नहीं हमारे पास. शुरू में एक टाइम पे आई थिंक अमराबाद वाज प्लेइंग क्रिस्टल पैलेस अगेंस्ट, उसने डेब्यू किया था इन द लीग कप वेयर ही प्लेड, और हम सब एकदम obviously like when we see a result we are like अरे यार हाँ शायद यूनाइटेड अच्छा खेल लेगी, but then the next game we saw like नहीं हो सकता है, he's not left back positioned. तो वो सब चीजें यार, वो सब चीजें आई थिंक इंपॉर्टेंट है. इंजरीज तो नेक्स्ट लेवल खराब हुई है. मैं कल एक कोट पढ़ रहा था इसी का, आई थिंक उसने बोला क्या, आई हैड टू स्टार्ट 15 सेंटर बैक ड्यू ऑफ द सीजन, राइट, एंड आई हैव had 33 different defensive lines in season, which is crazy. Like अगर इतना उसको ऐसा चेंजेस करना पड़ रहा है डिफेंस में 33 times out of what, like the 50 games they might have played. भाई ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही है. तो आई अंडरस्टैंड कि यार देख, उसको मेरे हिसाब से उसको सैक करना तो विल बी अ बैड डिसीजन, बिकॉज आई फील लाइक कि भाई कोई भी मैनेजर सिंस प्रॉब्ली जोसे मोरिन्यो has not won 2 titles back to back, like in a season, sorry, not back to back, but like back to back in a season, 2 different titles. But कुछ तो जितवाया है ना उसने. लास्ट ईयर तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस ही हमें दिख रही थी कि काफी अच्छा करते हैं, बट
the way we were playing, his vision is not that. He doesn't want to play like that. So इस season obviously Onana was like the struggle in the start, but धीरे I think उसकी performances भी throughout the season has definitely improved. वो शुरू में जो उसने इतने blunders किए हैं, वो improve तो करे ही है उसने. तो यार sack करना उसने रिफ्लेक्सिंग में बहुत काम किया भाई, ये तो दिख रहा था. उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हो गए. But sack करना will be probably a very rash decision. I don't think sacking is the solution. क्योंकि ऊपर से जो हम अभी बात कर ही रहे थे, there are no good bunch of managers who are available. अगर वो McKenna का चल भी रहा है, to be honest, I do not want McKenna. मुझे नहीं चाहिए. वो हमारे क्लब के साथ रिलेशन है, yes, I understand. But coming from a championship club, नहीं. मैं तो ये भी नहीं बोलने वाला कि इप्सविच आके धमाल मचाने वाली प्रीमियर लीग में. आई एम स्टिल प्रोबेबली इट विल बी माय प्रेडिक्शन कि भाई वो वापस रिलीगेट होने वाली क्लब, क्योंकि बहुत कम होता है भाई कि दे कैन जस्ट कम एंड शो. लेस्टर इज प्रोबेबली द ओनली क्लब दैट आई कैन से कि वो बच सकती है. साउथहैम्पटन अब आ गई है तो मे बी बच सकती है, बिकॉज दे नो लाइक they've been in the Premier League, they know how to manage it. But sacking तो गलत ही है. और the timing of it also was so wrong कि भाई कब फाइनल के एक दिन पहले ये लीक हो रही न्यूज कि हाँ भाई regardless of the situation हम तो sack करने वाले हैं. But also after what he said after the game, what he said in his press conferences also, I don't think any of them is suggesting कि he is going to get the sack. और plus अगर मेरे हिसाब से अगर उसको sack मिलना भी था तो sack आज आ जाता, क्योंकि उसका नाम क्या था, लुई वैन गाल, उसके साथ भी यही किया था. मैच जीतते ही लिटरली अगले दिन अनाउंस हो गया था कि वो चला गया. तो अब अगर उसको और 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद अनाउंसमेंट होती तो वो भी गलत ही है, बिकॉज देन अगेन वीव लॉस्ट दैट 2-3 weeks टू फाइंड दैट नेक्स्ट मैनेजर, राइट? which I don't think is going to happen, right? Because अगर उसको सैक करना है तो कल मैक्स टू मैक्स न्यूज आ जाएगी कि भाई फायर कर दिया है. Because I feel like the only positive that I'm seeing from United is कि हमारे पास right people है at the right positions again, and that is the only positive for me in the future. बाकी Glazers का कोई input नहीं है. Ineos is handling the entire sporting football for United. That's why Dan Ashworth का भी चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं है but Dan Ashworth का चल रहा है कि he's going to come from Newcastle. ओमार बोराटा हो चुका है from City, और वो उसके बाद में क्लॉप बोल रहा हूँ, ये गॉर्डियो भी कमेंट कर चुका है. ये जो क्या बोला तूने, क्या नाम है इसका जो सिटी से आया है? ओमार बोराटा समथिंग ऐसे ही कुछ है उसका. तो ये किस पोजीशन पे आया है? आई थिंक ही इज द टेक्निकल समथिंग. देख लेता हूं एक बार, मेरे को पोजीशंस याद नहीं है इन लोगों के. मतलब ट्रांसफर्स और उसको हैंडल करेगा. एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, कि अगर अभी टेनैक को सैक कर दिया ना, जनरली बता रहा हूं कि वापस से ना प्लेयर्स पे जो ब्लेम है वो हट जाएगा, एंड सर वापस वही बन जाएगा कि मे बी मैनेजर वाज रॉन्ग एंड द प्लेयर्स. क्योंकि यूनाइटेड में मेरा जो है कि जेन्युइन रीजन व्हाई यूनाइटेड फेल ऑफ वाज जो उनका जो जिसपे द टैलिस्मैन मार्कस रैशफोर्ड डिडंट परफॉर्म. एंटनी ऑन द राइट साइड कंप्लीटली इनविजिबल, राइट? तुम्हारा स्ट्राइकर में हॉलैंड ऑफ कोर्स टाइम लगेगा उसको बिल्डअप होने के लिए. देन आपका जो देयर वर अ लॉट ऑफ, जैसे एरिक्सन इज डन एंड डस्टेड. कैसेमीरो को डिफेंस में खिला के उसको एक्सपोज कर दिया पूरा कैसेमीरो को. ऑप्शन नहीं था ना भाई, ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास. वही बोल रहा हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कैसेमीरो को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसेमीरो भी एक्सपोज हो गया because of playing in different positions, whatever the reason for the injuries and all, right? और बहुत जगह अब तुम्हारे तो राइट और लेफ्ट बैक भी बहुत फंबल हुए हैं. मैं कभी देख रहा हूँ डालो यहाँ खेल रहा है, तो कभी देख रहा हूँ डालो लेफ्ट पे खेल रहा है. वैन बिसाका कभी कभार लेफ्ट बैक खेलने लगा, राइट? एग्जैक्टली अभी बोला ना, क्योंकि इंजर है ही नहीं लेफ्ट बैक, तो बेसिकली हमारे पूरा सीजन ही नहीं था, तो कुछ कर नहीं सकते उसमें. I think players के बारे में बात करना तो is like it doesn't make sense because injuries इतनी थी कि कोई सेंस नहीं था. मेरा पॉइंट ये था कि इसके अगर मैनेजर सैक हो जाता तो रैशफोर्ड वुड हैव बीन द सेम. रैशफोर्ड, क्योंकि रैशफोर्ड जिस तरीके उसका जो पीआर है एंड द इंग्लिश मीडिया है, नोबडी वुड हैव
said कि भाई United fell off because of Rashford. I personally believe United आज top 4 में होती अगर Rashford would have played the same game that he played last season. हाँ भाई गोल्स ही नहीं मारे भाई, हमारा गोल Goals ही नहीं डिफरेंस मारे. इज +2 और हम 6 फिनिश करें, +2 हो 7 गया? फिनिश करें. हाँ +2 हो गया था ना, एंड में जीत गए ना 2-0. अच्छा हो गया क्या? हो गया तो क्या? +2 अच्छा भाई, तो भाई इट इज भाई 38 गेम सीजन में +2 गोल डिफरेंस लेके हम निकले, तो दैट इज जस्ट शोइंग कि हमारा डिफेंसिव कैपेबिलिटी कितनी खराब थी, और गोल्स हम नहीं मार पा रहे थे. गोल्स नहीं गोल्स मारे नहीं मार हम, पा रहे थे. नहीं मार पा तो रहे थे आई गोल्स हम. थिंक टेना को रखना इज अ गुड स्टैंस फ्रॉम द बोर्ड कि भाई वी आर बैकिंग द पर्सन हु is responsible for managing the team and we are not backing the players who did not perform. माइनस That was ऋषभ my -1 point. है. अच्छा -1 है, ठीक है फिर भाई मैं -1. वही शॉक हो गया यार, तुम +2 पे चले गए. मुझे लगा -1 था, एंड उसके बाद हम जीतने के बाद +1 हो गया था. -3 था, -3. ठीक है. हाँ वो अच्छा, वो साला 57 गोल मारे हैं, 58 गोल खाए हैं. क्रिस्टल पैलेस भी ऐसे खराब हो गया था ना, वो 4-0 हार गए थे, भूल गया था वो मैं. तो क्रिस्टल मेरा पैलेस बस का भी यही पॉइंट है -1 कि है. ये अच्छा डिसीजन है अगर मैं टेना को रख रहे हैं तो ये अच्छा डिसीजन है. नहीं बट मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ जो अंशुमन बोल रहा था अबाउट रैशफोर्ड. आई थिंक धीरे धीरे करके ना लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस आर लूजिंग देयर पेशेंस विद रैशफोर्ड. तो अरे हो गया भाई, मुझे हो क्या गया. लगता है कि रैशफोर्ड रुकना चाहिए. ही स्टिल हैज दैट कि ही कैन लीड बिकॉज चलो हो आई गया, हो थिंक गया, बस इवन हो गया. नहीं मैं मतलब जाओ मैं जाओ भाई. मेरा क्वेश्चन ये है कि आई थिंक टेन हाग आल्सो सीज कि रैशफोर्ड इज नॉट द राइट पर्सन फॉर द टीम एंड इसीलिए वो स्टार्ट भी नहीं कर रहा था रीसेंट मैचेस. भाई तो डू यू गैरेथ जेन्युइनली साउथगेट थिंक ने जब रियलाइज कर लिया ना, आप समझ लो, जब गैरेथ हाँ साउथगेट कैन रियलाइज ये प्लेयर नहीं है, आप समझ लो कि कोई ही इज नॉट डिजर्व टू बी इन द टीम. गैरेथ साउथगेट की तो बात ही मत करो, वो साला वो तो देखता ही है, वो उसका लिटरली उसका पता क्या होता है, वो लिटरली वही होता है जो हमारी इंडियन टीम भी वही होती है भाई. जब आईपीएल चल रहा होता है भाई, उस बेसिस पे अगर आज किसी ने परफॉर्म कर दिया उसको डाल दो. अब उसने सीजन खेला नहीं है और राशफोर्ड आउट. अगर वो, मैं बता रहा हूँ, अगर वो मार्च से मई के बीच में मार देता ना गलती से 10 गोल, राशफोर्ड बाहर नहीं होता. राशफोर्ड अभी भी टीम में होता है हाँ इंग्लैंड हाँ, की. वो आ जाता, वो आ लिख के जाता. ले लो मेरे से. हाँ भले पूरा सीजन आ हाँ जाए उसमें वो, लेकिन खेलता. बट तुझे लगता है रैशफोर्ड बिक सकता है इस सीजन में? आई थिंक बेचना ही पड़ेगा. इस आई सीजन थिंक में देयर इज अ नीड ऑफ द फुल क्लियर आउट, जो हम पिछले 6 साल से बोले जा रहे हैं ना. फिल जोन्स जब हमारे क्लब में बैठ सकता है विद 200K डूइंग नथिंग एट ऑल, तो फिर तो भाई, फिर तो क्या ही बोल सकते हैं ना. मतलब हमारे अभी भी क्लब की है फिल हालत तो जोन्स. उसी से समझ में आती है. आई थिंक गया दिस इज गया द भाई, लास्ट ईयर. गया. आई थिंक अब हो गया. आई थिंक अब खत्म हो गए अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स. हाँ. गया. मैं सरप्राइज हो जाता अगर अभी फिल जोन्स होता टीम में. नहीं बट है, आई थिंक है, इस साल था, बट अब हो चुका है. अब दिस वाज हिज लास्ट ईयर. आई थिंक जा चुका है वो, या लास्ट ईयर निकल अच्छा, चुका था. मुझे याद नहीं है नहीं वैसे. लास्ट ईयर निकल गया था. लास्ट ईयर निकल निकल गया गया था. था लास्ट ईयर. हाँ ठीक. निकल गया है, निकल गया. लास्ट तो एरिक बाई भी निकला था. बट देयर हैव बीन प्लेयर्स, यू सी. मेरे हिसाब से स्कॉट मैकटोमिने शुड बी गॉन. निकल जाना चाहिए उसको. ही विल बी अ गुड रोल प्लेयर फॉर एनी अदर टीम. वेस्ट हैम जैसी प्लेयर्स के लिए ना, और टीम्स के लिए वो सही प्लेयर है. यार यूनाइटेड के लिए तुमने नहीं है सही वो. गलत मिडफील्डर भेज दिया यार. ये जो सीजन की शुरुआत में ना, फ्रेड. तुम्हें स्कॉट मैकटोमिने भेजना था और फ्रेड को रखना था. फ्रेड आई नो. भेज दिया, क्योंकि इस पॉइंट पे ना अगर कैसेमीरो के साथ फ्रेड रहता तो आई थिंक कैसेमीरो के पास इतना स्ट्रगल करने का तो नहीं होता जितना उसने किया है. बट उनके पास रिप्लेसमेंट आ गया ना कोबी मेनू में. काफी अच्छा रिप्लेसमेंट आ गया. बट वो तो भाई, वो मेरे हिसाब पर से वो वो तो सीडीएम थोड़ी ना यार, कोबी मेनू. नहीं मिडफील्डर है. आई थिंक मिडफील्डर ही बॉक्स टू खेलना है ना बॉक्स उसको, ज्यादा. लेकिन मिडफील्डर ही खेलना है हाँ. उसको. ही बट नीड्स टू प्रोटेक्ट कैसेमीरो, दैट्स व्हाट इट इज. हम्म. हाँ, ही हैज टू प्रोटेक्ट कैसेमीरो. हाँ. बट कैसेमीरो खत्म हो गया. कैसेमीरो के लेग्स अब दिख गई है, तो आई थिंक वरान तो जा ही रहा है. कैसेमीरो इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी गॉन. हमें प्रोबब्ली एक सेंट्रल मिडफील्डर और चाहिए, और एक स्ट्राइकर चाहिए, बैकअप स्ट्राइकर चाहिए. लूक शॉ. तो लुक शॉ रहेगा. लुक शॉ का कोई, मेरे को लगता है लुक शॉ की परफॉर्मेंसेस हैव बीन वेरी गुड, बट आई थिंक उसके तो अब यार इंजरी वो तो बंदा सीजन में ही हो गया वही है. है ना कि अब कब तक कितना वो. ऐसा भी तो नहीं ना कि यही एक सीजन है जिसमें लुक शॉ इतना इंजर्ड रहा है. वो हाँ तो पता ठीक है, नहीं. लेकिन एक बट मेरे हिसाब से, बट उसका रिप्लेसमेंट है हमारे पास. मलासिया है हमारे पास. बट मेरे वो हिसाब भी से इंजर्ड था ना एकदम शायद. से, बट मेरे, हाँ वो भी इंजर्ड था, बट मेरे हिसाब से पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक सीजन में तो नहीं होने वाला है. और प्लस प्रीमियर लीग ने बहुत रेस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं बेस्ड ऑफ दैट. जो उनके रूल आ गए, वो क्या क्या आया है उनका रूल, वो रिगार्डिंग ट्रांसफर्स. समथिंग कुछ बोलते हैं उसको, सस्टेनेबिलिटी रूल समथिंग कुछ तो आया, राइट.
तो क्या है वो रूल? वो तो वही देख रहा हूँ। नहीं रूल वही है। अबे मतलब उसके ऊपर टर्म कुछ बोलते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रही है, बट रूल वही बेसिकली कि नॉट लाइक ओवरस्पेंड करोगे तो ये फिर एवर्टन नॉटिंघम फॉरेस्ट से मिलेंगे फिर। दैट्स द रीजन ना कि यूनाइटेड हैव नॉट बीन एबल टू स्पेंड एनीथिंग। ये अमराबाद लोन पे क्यों आया था? इसी वजह से आया था बिकॉज अगर हमारे पास उसको खरीदने के पैसे नहीं थे। अमराबाद लोन लोन के पे आया है? हाँ अमराबाद वो लोन पे लोन था। पे है हाँ तुम्हारे क्लब में? हाँ तो लोन पे वो मतलब अब आया है तो तो वो अब चला जाएगा। साइन तो हाँ नहीं जा कर रहा रहे है। हैं उसको, साइन तो नहीं कर रहा हो, नहीं वो नहीं हो नहीं पाएगा, करेगा वो यूनाइटेड मटेरियल नहीं है। वही। Basically, you cannot. Basically, what it is you cannot just go and spend Jim Ratcliffe's money. That's what the rule is. मार्शियल, कि बस इसका मार्शियल मार्शल का भी कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक इस साल एंड हो रहा है। आई थिंक मार्शल भी जाएगा। आई तो थिंक इसी उसका साल की उसका नेक्स्ट एंड हो रहा ईयर, है। नेक्स्ट ईयर नहीं एंड हो इस रहा है, साल इस साल फ्री ही में हो निकल सकता है जाएगा? उसका। अच्छा, तो कहाँ ही जाएगा भाई। निकले भाई, यूनाइटेड नहीं फैंस तो फ्री चाहते में हैं तो बट जाएगा, निकले तो 2024 जाए, जाना ही एक्सटेंशन। जाए। हाँ हाँ गया पैसे देके भी निकाल देंगे वो तो उसको। 2024 तक ही था तो उसका गया। सामने वाली क्लब को पैसे दे रहे हैं यार कि तुम पैसे भी लो, मार्शल भी लो भाई। एक काम करो, रैशफोर्ड भी ले लो, क्योंकि भैया एक काम करो, रैशफोर्ड तुम दे दो, हाफ हाफ वेजेस कर लेते हैं। लोन इस बार ट्रांसफर में हाफ हाफ हो रहा है भाई। 325K विद द फॉर्म रैशफोर्ड हैज, पता नहीं कौन सा क्लब रेडी होगा देने के लिए, अपार्ट फ्रॉम पीएसजी। पीएसजी चला गया तो शायद भाई पीएसजी उसको जा भी वहां मार्शल सकता ने पे। है वो। एक गोल नहीं मार्शल ने एक गोल पीएस नहीं मारा ला लीगा में, हाँ तो उधर 0 बहुत गोल्स। गंदा खराब था वो। सेविया में गया था ना, बहुत खराब स्पेल था हाँ उसका। एक गोल मारा है इससे बस 12 गेम में, वो उससे भी यूरोपा लीग में। उससे अच्छा तो भाई वो खेल रहा है अपना हमारा ग्रीनवुड हेटाफे में। ही इज प्लेइंग एटलीस्ट गुड। अच्छा वो भी तो वापस बट आना है, वो हाँ भी तो बट एक उसका अलग पता नहीं डिबेट है। है। बट उसका पता नहीं है अभी तक कि आएगा या नहीं आएगा। तो बट एनीवेज सैंचो, मेरे हिसाब से सैंचो भी तो आ रहा है वापस। नहीं आएगा क्या वो नहीं तो। आएगा? चल छोड़, वो वन तो वन वो क्या तो रहा है वो? वो तो चला जाएगा। डॉर्टमुंड ले लेगी उसको वापस। और उसने जितना अपना जो वैल्यू था जो गिर गई थी वो वापस बढ़ चुकी है। एंड डिपेंडिंग अपॉन अब वो क्या करता है चैंपियंस लीग फाइनल में और बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी। अगर बाय चांस जीत गए, बाय चांस जितवा देते, वैसे तो नहीं लग रहा है मुझे, बट जीत जाते तो होगा उसका वैल्यूएशन और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ही मतलब। तो मतलब यार तुम्हें तुम्हें प्लेयर तो फिर भी काफी चाहिए होंगे ना इस बार, मतलब चाहिए चार ही, पांच प्लेयर तो चाहिए चाहिए ही। तुम्हें। कैसेमीरो गया, वरान जाएगा, जा ही रहा है मतलब वो तो। और एक डिफेंडर, मतलब स्टार्टिंग डिफेंडर चाहिए तुम्हें एक हाँ एलीट लेवल पे। टू तुम्हें पार्टनर एक विद मार्टिनेज। लीचा, हाँ हाँ, करेक्ट। और फिर अब तुम्हें एक सीडीएम चलो चाहिए एलीट। सीडीएम से ज्यादा आई आई थिंक थिंक हमको मिडफील्डर ट्रांसफर्स का चाहिए। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे क्लब्स को क्या प्लेयर्स चाहिए, कहाँ पे हम्म। रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड है। आई तो फिर थिंक अब आते हैं हम, अब फिर हम आते हैं विन डीजल पे। विन तुम्हारा डीजल। मैनेजर विन डीजल, हाँ विन डीजल। विन डीजल। भाई विन डीजल ही लगता है भाई उसको। एक इस एंगल से देखा है ना, लिटरली इतना मोटा सर है उसका, मोटा सर, बिल्कुल टकला। सही में भाई वो लगता है वो कांचा चीना। क्या? आज आज मैं एक वो देख रहा था, ग्राफिक आया हुआ था ट्विटर पे, ट्विटर या एक्स जो भी कहते हैं अब, कि नॉर्थ और साउथ में ना वो हो गया, बाइफर्केशन हो गया है। ऑल द मैनेजर्स इन द नॉर्थ आर बॉल्ड। तो उसमें कौन कौन था? टेन हाग था, ग्वार्डियोला था, आर्ने स्लॉट था, और ये एवर्टन का मैनेजर का क्या नाम है? शॉन डाइश। शॉन शॉन, डैश। ठीक है, और फिर साउथ में थे जहाँ पे आर्टेटा है, थॉमस फ्रैंक है, और 3-4 और मैनेजर्स थे, सबके बाल बड़े अच्छे अच्छे, मतलब गुड लुकिंग हेयर और ये सब। और ऊपर नॉर्थ में सारे गंजे। तो अब ये हो गया सारे बॉल्ड गंजे। वर्सेस नॉन बॉल्ड, ये वाली एक लीग स्टार्ट हो गई है कि कौन मतलब से ज्यादा आप परफॉर्म सबसे ये करेंगे। सोचना भाई, आप क्लब में एंट्री मार रहे हो, प्लेयर्स नहीं, पहले आप बार्बर शॉप पे बंदा वो लेके खड़ा है, सर आपके बाल तो मुंडवाने हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में था। खैर एनीवेज, कमिंग टू आर्ने स्लॉट, भाई यार क्या आर्ने लगता है स्लॉट का, शर्मा? यार मुझे जेन्युइनली आई हैव नो एक्सपीरियंस और नो नॉलेज अबाउट हिम। मैंने जितना भी पढ़ा है, आई जस्ट नो कि उसका प्लेइंग स्टाइल इज सिमिलर टू व्हाट क्लॉप यूज्ड टू प्ले, in terms of अच्छा, that heavy pressing गीगन and प्रेसिंग। I think एक टर्म शायद ऋषभ ने यूज करा था, how he wants his team to play, एरिक टेन हाग। क्या क्या बोला था तूने? काउंटर क्या तूने कुछ बोला था कि गोलकीपर के वहां से he wants the team to play in such a style। प्ले फ्रॉम द बैक।
नहीं कुछ था, चलो जो भी है, जब भी अगर मुझे हम्म याद आया तो मैं बोल दूंगा, बट आई थिंक उसका भी सिमिलर स्टाइल है दैट whenever his team loses the possession, he wants his team to win back the possession at that area only, especially in the midfield. And उसका playing style थोड़ा different है. He has a 4-2-3-1 playing style compared to Klopp का 4-3-3 था. तो आई थिंक बहुत सारे इंडिकेशंस यही हैं कि क्लॉप बोल रहा हूँ, ट्रेंट विल बी मूविंग इनटू द मिडफील्ड एरिया अ लॉट मोर विद आर्ने स्लॉट आल्सो, ऑल्दो कुछ गारंटी नहीं है उसकी. एंड वी विल बी हैविंग अ नंबर 10 वाला प्लेइंग सिस्टम थोड़ा ज्यादा इस सीजन. जब से कोटिन्यो गया था आई थिंक वो नंबर 10 वाला सिस्टम हट गया था. हट गया बट था. वी हैव अ प्लेयर फैबियो कार्वालियो करके एक है जो फुलम से लिया हमने था वुल्फ तुमने? से लिया था. हाँ फुलम से लिया फुलम था, के नहीं फुलम में अभी फुलम से लिया खेल था. रहा था शायद. फुलम में अभी खेल रहा था वो लोन पे. नहीं, वो अच्छा, तो लोन पे खेल रहा था. चैंपियनशिप से आया था ना वो तो. हाँ हाँ हाँ, वुल्व्स वुल्व्स अभी वुल्व्स. यस यस. वुल्फ से वुल्स ही नहीं लिया था भाई, शायद. हाँ नहीं वुल्स वुल्फ से से लिया लिया था. था. हाँ अच्छा. हाँ हाँ चैंपियनशिप में जब वुल्फ थी तब लिया था. अ, तो मुझे लगता है कि आई थिंक प्लेयर लाइक फैबियो कार्वालियो या हार्वी एलियट हो गए या सोबोस्लाई हो गए, आई थिंक ये प्लेयर्स थोड़े ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे इन दिस सीजन. जहाँ पे उसका उसका वो स्टाइल वैसा नहीं है जैसे क्लॉप का, दैट हिज फुल बैक्स अटैक अ लॉट. सो दैट्स वेयर आई फील दैट ट्रेंड थोड़ा इन्वर्ट करेगा जो अभी क्लॉप भी करवा रहा था, एंड वी विल हैव अ नंबर 10 वाला सिस्टम थोड़ा ज्यादा. फुलम से ही बट लिया था उससे तुमने ये क्लब, ये प्लेयर तो नहीं वुल्स नहीं कहाँ नहीं था. नहीं नहीं नहीं, वुल्व्स वुल्व्स. अबे फुल दिख रहा है यहाँ पर, फुलम में था 20 से 22. वो हल सिटी में खेलता है अभी, लोन लोन पे इस साल खेल मतलब रहा था फुलम मतलब. से हाँ लिया. फुलम से लिया फुलम था, से हल लिया में था अभी भाई. खेल रहा है वो. ठीक है हाँ ठीक है ठीक. एंड हाल में उसका अच्छा सीजन रहा था अभी, आई थिंक 9-10 गोल मारे थे उसने कुछ. बट इतना ही मुझे पता है आर्ने स्लॉट के बारे में. आई जेन्युइनली आई थिंक मैं शायद ऋषभ या तुम में से किसी एक को बोल रहा था, शायद ऋषभ को बोला था मैंने, कि मुझे कॉन्फिडेंस अभी आर्ने स्लॉट पे नहीं है, बट आई हैव द कॉन्फिडेंस जो इन्होंने बैकरूम स्टाफ इन्होंने वापस वो जो कर लिया है ना, दैट माइकल एडवर्ड्स इज बैक. एडवर्ड्स. हाँ तो आई थिंक उस पे ज्यादा भरोसा है दैट जो अभी लास्ट 3-4 साल में साइनिंग्स हुई है ना, दैट हैज बीन, जो मुझे अभी अब काफी मीडिया में आ रहा है दैट आई थिंक क्लॉप एंड एडवर्ड्स की इतनी बन नहीं रही थी. क्लॉप वांटेड हिज स्टाइल अच्छा. ऑफ प्लेयर्स एंड देन एडवर्ड वांटेड प्लेयर्स जो थोड़े हाई वैल्यू पे हों, एंड दैट्स व्हाई एडवर्ड मूव्ड आउट. एंड उसके बाद से आई थिंक लास्ट 2 साल में ना हमारी साइनिंग्स थोड़ी ज्यादा ऑफ रही हैं इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट वी स्पेंट एंड जो परफॉर्मेंसेज आए हैं उन प्लेयर्स से. डार्विन नूनेज हो गया, सोबोस्लाई आल्सो स्टार्टेड वेल बट नॉट इतना एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना नहीं, उसने डिलीवर नहीं करा है. एंड आई थिंक एक प्लेयर और था जो मुझे याद नहीं आ रहा है. थियागो तो चलो ठीक है अलग था. एक आर्थर साइन करा था गया शायद ना, हमने लास्ट थियागो सीजन. गया ना फाइनली, गया ना क्लब से. हाँ 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 हाँ. थियागो तो गया. आई थिंक और जो मुझे जोल मैटिप मैटिप भी गया. मैटिप गया, हाँ ये दोनों गए. मैटिप. तो मुझे बस यही लगता है कि आई थिंक वो जो बॉर्नमूथ से भी वो लाए हैं जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है, जो एक्चुअल डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है वो है रिचर्ड ह्यूज करके जो है, वो बॉर्नमूथ में था. एंड माइकल एडवर्ड्स इज गोइंग टू बी फुटबॉल सीईओ फॉर एफएसजी. आई थिंक दे आर गोइंग टू अ मल्टी क्लब स्ट्रेटजी अब, जहाँ पे दे विल बी हैविंग अ अच्छा. सिस्टर क्लब जहाँ से दे विल बी अच्छा. बाइंग प्लेयर्स एंड वहां से लिवरपूल में अच्छा. ट्रांसफर करवाएंगे. तो आई थिंक दे आर गोइंग टू दैट मल्टी क्लब स्ट्रेटजी एंड उसके लिए एडवर्ड साइन हुआ है. बट दैट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ यार चलो ठीक है, ये लोग हैं हु नोज हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द प्लेयर्स. बिकॉज अभी आई थिंक हम 3-4 प्लेयर्स बेचेंगे भी, अगर उसमें से जो गोमेज आई थिंक हो सकता है जो बिक सकता है, एंड ही इज डन वेरी वेल दिस सीजन. तो आई नो दैट एडवर्ड्स विल बी समवन जो 40-45 मिलियन भी लागते हैं. फिर केलेहर हो गया जो हमारा कीपर है, तो उनके लिए आ सकते हैं. बट हाँ, बट मेरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन इज नॉट गोइंग टू बी कि सीधा आते आने टाइटल स्लॉट एकदम से टाइटल गंग फाइट. हो बढ़िया ही वो करवा देगा. टॉप 4 आई वुड वांट कि वो टॉप 4 फिनिश करे, बट इट मोर डिपेंड्स कि उसका कैसा प्लेइंग स्टाइल है, हाउ इजीली द प्लेयर्स अडैप्ट टू द न्यू मैनेजर, एंड कैसे वो एक ऑरा होता है ना ऑफ अ मैनेजर, जो क्लॉप का एक ऑरा था विद द मीडिया विद द प्लेयर्स, वो 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 कैसे वो चीज सेट कर उसको लेता है. बिल्ड करनी पड़ेगी, वो उसको बिल्ड करनी हाँ पड़ेगी स्लॉट को. आई तो थिंक वही तो सबसे क्लॉप, इम्पोर्टेंट चीज है, हाउ ही एक तो क्लॉप रिप्लेसेस. का जो खुद का पर्सनालिटी है ना, वो जो जोवियल पर्सनालिटी है, वो जो जो उसको जो एक मैग्नेटिक चार्म है, that also helps players ease up a lot better compared to a lot of other managers. Let's say Jose Mourinho होता तो बहुत दिक्कत हो जाती probably some players को. क्लॉप का, और that is why people say कि क्लॉप जैसा मैनेजर नहीं है, not because
Yeah, that is one of the reasons कि वो खिलाता, उसकी practical knowledge है. The other reason is the person that he was. Right? अब वही है, as usual मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है आर्ने स्लॉट का. वो हमें पता चलेगा ऑब्वियसली. इंग्लिश मीडिया में तो जो निखर के मुझे आती समझ है में लोगों आया की है, पर्सनालिटीज. जो मुझे समझ में आया, आई थिंक ही इज नॉट द यूजुअल डच मैनेजर जो लुई वैन हाल था या फिर जैसे एरिक टेन हाग है, दैट दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी रिजिड विद द मीडिया, कि मतलब दे डोंट स्पीक अ लॉट एंड दे आर नॉट वेरी जोवियल विद द मीडिया. आई थिंक ही इज अ लिटिल ऑपोजिट टू व्हाट एरिक टेन हाग इज, क्योंकि एरिक टेन हाग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियस उसमें बात करता है. वो थोड़ा डिफरेंट है, समवॉट सिमिलर टू क्लॉप. बट हाँ, वही चीज है कि वो अलग लीग है, ये अलग लीग है. एक Yes. चीज आई थिंक मैंने शायद वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट दिस क्योंकि चैनल तब हॉल्ट पे था, अबाउट क्लॉप एंड अबाउट हाउ द लास्ट 9 years वर. आई थिंक द बेस्ट 9 years आई हैव एवर हैड. वॉट एवर हैपन, मैं शायद अंशुमन तुझे बोल भी रहा था कि मुझे वो सारा टाइम याद आ रहा था जब क्लॉप हायर हुआ था. आई थिंक हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में थे एंड वी आर टॉकिंग कि यार लिवरपूल ने कहाँ से क्लॉप को साइन कर लिया. आई थिंक यार ये तो बेस्ट चीज़ हो गई है लिवरपूल के लिए. एंड मैं तब भी यही था कि नहीं यार, सारे मैनेजर्स यही होते हैं, आएंगे 2-3 साल में चले जाएंगे. भाई बट आई मेरे थिंक को, इज मैं चेंज. बता रहा था तेरे को कि मेरे को तो गीगन प्रेस के बारे में पता चला क्योंकि क्लॉप आ रहा है लिवरपूल, और भाई ये ही इज ब्रिंगिंग द गीगन प्रेस विथ हिम. व्हाट इज गीगन प्रेस? अच्छा. एंड द बिगेस्ट पार्ट इज कि वी एक्चुअली सॉ दैट. बहुत बार ऐसा होता है कि यू ब्रिंग अ मैनेजर फॉर अ सर्टेन फुटबॉल एंड दे कम टू द लीग, दे रीड द लीग एंड दे सी कि भाई नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आई हैव टू एडजस्ट माई सेल्फ. But he made sure that he puts his stamp. The way he put his stamp on Dortmund, the way he put his stamp on Liverpool, it was very similar. तो उस हिसाब से तो लगा यार, मतलब कि he genuinely is a brilliant tactician, first of all. बट And उसने पता क्या एक चीज और थी. आई थिंक although a lot of fans never used to accept this, but Liverpool were going into that mentality of a mid-table club, 7 to 10 के बीच में finish करना है. Regularly that was happening, and players जो आ रहे थे, they used to treat Liverpool as a stepping stone to get into stepping a bigger stone. team. चाहे वो चेल्सी पे जाएं, चाहे वो वो हम बायर्न है, जाएं वो या अब हम है, वो अब बार्सिलोना हम जाएं. है. हाँ, but he's changed that philosophy, he's changed that mentality. मैं बस ऐसी while उसका लास्ट मैच चल रहा था, वाज जस्ट वो एक फ्लैशबैक आता है ना ऑफ लास्ट 9 years हाउ दे वर, एंड उससे पहले लिवरपूल कैसी थी. तो मुझे बस ना वो फ्लैशबैक आ रहा था दैट लास्ट 9 years मुझे कोई भी मैच में ना टेंशन ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था यार ठीक है, क्लॉप है, ही विल हैंडल समथिंग. एंड वो एक कॉन्फिडेंस आ गया था टीम में कि इवन इफ द वर्स्ट ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, तब भी स्पेशली जो चेल्सी के अगेंस्ट हम जीते थे, चाहे चेल्सी जितना खराब खेली वो हो, तो चाहे वो तो बेस्ट एग्जांपल है आई गेस. हाँ, वो बेस्ट एग्जांपल है. दैट इज अ ट्रू टेस्टमेंट ऑफ हाउ क्लॉप वाज, कि भाई वर्स्ट केस सिनेरियो में भी ही एंश्योर्ड कि हम ट्रॉफी लेके आ जाएं. एंड आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट थी दैट वी डिडंट एंड द सीजन वेल, बट हमने जिस तरीके से सीजन स्टार्ट करा था ना, वी डिडंट एक्सपेक्ट कि लिवरपूल टाइटल रेस में होगी भी, और वी माइट गो इन ऑल द 4 कॉम्पिटिशंस टिल द एंड. वो आई थिंक इवन ही वाज सरप्राइज्ड एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड कि यार ठीक है, अभी लिवरपूल सही सिचुएशन पे है एंड आई कैन लीव अर्ली. But yeah, I think 9 years, amazing 9 years. अभी I'm ready to go back to that phase जहाँ पे रॉय हॉडसन था, ये था, वो था. We were finishing 7th, 8th, नहीं यार, 9th, 10th. मेरे को मैं नहीं लग रहा कि उस इतना गिरने वाले हो तुम. मेरे को नहीं लग रहा है नहीं कि यू विल गोइंग टू सी दैट काइंड ऑफ. बट एक वो माइंड में वो रहता है कि यार वी माइट गो बैक टू दैट फेज, बिकॉज होता है. हाँ, आर्सेनल के वो साथ हुआ, नेचुरल. यूनाइटेड के हाँ. साथ हुआ. ऑल्दो वो सिचुएशन अलग थी. लिवरपूल के प्लेयर्स आर बेटर इन टर्म्स ऑफ जिस सिचुएशन में क्लब छोड़ के गया है, जिस सिचुएशन में क्लब है अभी राइट नाउ, फाइनेंशियली भी एंड द बैकरूम जो स्टाफ के बारे में बात करी हमने. बट स्टिल इट फील्स कि आर्ने स्लॉट के लिए इट्स अ वेरी बिग शू टू फिल कि यार क्लॉप को तुम रिप्लेस कर रहे हो. ट्रू. इट्स नॉट ओनली द फुटबॉल, एनी इट्स द ऑफ मैनेजर फील्ड. ब्रो, एनी मैनेजर. हाँ, मतलब ऑफ फील्ड जो उसका हो रहा था ना, विद द फैंस, द कनेक्ट विद द फैंस, विद द सिटी, all these things are very difficult to replace. And I think every Liverpool fan has to be very patient with Arne Slot. You cannot expect that day one say he'll start performing up to the level of a very good manager also. I am ready to give him one off season, चाहे वो 8th finish करवा दे, 9th finish करवा दे. It just depends कि उसके performances कैसी हैं on the field. मेरे हिसाब से टॉप 4 फिनिश तो नहीं कर रहे तुम. I don't think like होने वाला है वो.
I think there is टॉप 4 कर there सकते is हैं going बिकॉज to be, प्लेयर्स अच्छे हैं, अगर 2-3 but I प्लेयर अच्छे feel साइन like कर लेते हैं. but I also feel like Saudi is going to come again in the summer where a lot of the clubs will probably be saved. I think Salah का chances हैं. I don't know exact news, नहीं पता exactly what has come from the camp कि भाई वो जा रहा है या नहीं जा रहा है. But like they came last year also, clearly मना कर दिया था. But I don't know like if this is the year where they're like ठीक है अभी हो गया है 30 जो भी 32-33 का हो चुका है. And like it's time to sell him. और अगर अच्छी पैसे मिल रहे होंगे, लास्ट टाइम 200 मिलियन दिए थे कुछ ऑफर, ऐसे कुछ ऑफर था. तो अगर 200 मिलियन लास्ट ईयर दिया था तो इस ईयर 100 तो देना ही चाहिए मिनिमम उस बेसिस पे. तो आई थिंक एक चीज है बस कि साला का लास्ट सीजन है ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब. तो फिर then also makes sense, right? Then if you're getting अब वो 100 डिपेंड million for करेगा him, कि वेदर लिवरपूल आर फाइन कि उसको फ्री में जाने दे नेक्स्ट सीजन, और दे आर फाइन कि नहीं भाई इसको अभी बेच दो, पैसे ले लो. बहुत सारी चीजें आई थिंक अभी तक आई एम नॉट श्योर कि कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है ऑफ हु इज गोइंग टू स्टे. आई एम but श्योर मेरे हिसाब से वर्जिल it makes sense, right? But मेरे हिसाब से it makes sense, right? Because if a new manager is coming, you already know कि he is 33, probably going to leave the club next year. So then why not just start from scratch anyways? Because you're starting from zero again anyways. आई थिंक मैंने तो मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था दैट साला विल लीव बिकॉज उसकी परफॉर्मेंसेस भी डिग्रेड कर गई थी आफ्टर द इंजरी जैन के बाद. I feel Liverpool needs a new start. कोई एक मैच में तो क्लॉप से ही लड़ पड़ा था वो. हाँ जब सब्स्टिट्यूट हो गया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था कुछ. फ्रस्ट्रेट होने लगा था यार वो एंड ऑफ द सीजन में, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा. हाँ बट वो यार वो आई थिंक बट मे बी वो तो उसके भी हो सकता है यार, क्योंकि तुम लोग काफी डिरेल हो गए ना यार. लाइक you were basically in prime position to win at a point, and after that you just kept losing, dropping points. ये वो तो उस पे भी फर्क पड़ ही रहा होगा यार. पर ये मैंने जो नोटिस करा है ना, मैंने ये जो नोटिस करा था कि when they started dropping off, वहां पे one of the reasons was injuries. तुम्हारे कुछ की प्लेयर्स गायब हो गए तुम्हारे क्लब से यार. और हमारा वहां से एक्चुअली पता है क्या है, बच्चे खेलने लगे. You can thank us. हम लोगों की वजह से ही तो तुम्हारा पूरा खराब हुआ था. हम लोग ना हराए उसके बाद खत्म हो गई तुम्हारी टीम. वो मैच तो बहुत ही अजीब था वैसे. बट मैं ये बोल रहा था यार, आई थिंक तुम लोग जैसे बोल रहे हो रैशफोर्ड है या फिर निकोलस जैक्सन है, आई थिंक हमारा सीजन वाज हैम्पर्ड बिकॉज वी डिडंट हैव डियोगो जोटा इतना, एंड वी हैड टू रिलाई ऑन डार्विन नूनेस फॉर द गोल्स. एंड वो कल मैं और ऋषभ भी बात कर रहे थे इस पे. एंड अभी मुझे ये सुनने को आ रहा है दैट आर्ने स्लॉट इज एक्साइटेड टू वर्क विद नूनेस. तो मैं सरप्राइज्ड हूं कि कैसे वो अभी भी यार देख यार, हम तीनों ने ना, वी ऑल थ्री ऑफ अस हैव सीन some players completely drop off from the radar, and suddenly the system changes, the manager changes, and the player comes back, he starts performing. So it is very possible. आर्ने स्लॉट को इंग्लिश आती है? इंग्लिश आती है उसको कि अभी डची में ही बात आती है? वो तो आती कम से. मैंने भाई मैंने देखा है, उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने. नूनेस तो 2 साल में नहीं सीखा अभी तक. अभी तक नहीं सीख पाया वो इंग्लिश. मैं नूनेस का ना मुझे क्यों एक्सपेक्टेशन अब कम हो गई, एंड पता नहीं, मैंने शायद हमारा तब पॉडकास्ट चल रहा था, मैं वो मिस नहीं भूल सकता हूँ जो उसने शेफील्ड के अगेंस्ट करा था. मतलब लूटन के अगेंस्ट. और हम वो मैच हार रहे थे, आई थिंक हमने शायद एंड में जाके ड्रॉ करवा लिया था या क्या हुआ था. बट वो मैं मिस नहीं भूल सकता. और उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि नूनेस की परफॉर्मेंसेस खराब नहीं होती हैं. वो इतनी अच्छी पोजीशंस पे पहुंचता है, उसके रन्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके में फिनिशिंग इंस्टिंक्ट है ही नहीं. अगर इतना मैचेस जोटा खेला होता ना, तो वी वुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 10-15 गोल्स मोर. बट वही इशू है कि जोटा की इंजरी इशू, और उसकी फिनिशिंग कम से कम 70% हायर रेट पे. Like the way he finishes, even from when he shoots from outside the box, he clearly like he knows how to finish the ball. Clearly know how to finish. But उसकी क्रेजी है. नूनेस मतलब 6 यार्ड से भी मिस कर देता. वही. एंड और एक चीज और है, आई थिंक बहुत सारा ना ये आ जाता है कि साला परफॉर्म नहीं कर रहा है. जब साला परफॉर्म करता था ना, ही हैड फर्मिनो, एंड बहुत बार माने ने उसको सेव करा है बिकॉज माने का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा था. अभी क्या है, डियाज का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड इज नॉट गुड. I think there are talks कि he might be sold because Barcelona या PSG are interested in signing him. And very honestly, I would not be surprised and I would not be sad also अगर Diaz जाता है, because उसका ना finishing का issue है. तो when you have two players out of the three, हाँ, लुइस डियाज का भी है. उसके गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड अच्छा है. वो पिछले सीजन आया ना? हाँ पिछले सीजन आई थिंक. पिछले से नहीं 2. अबे वो जैन में आया था.
जैन में आया था, पिछले 1.5 जैन साल में ही आया हुआ है। हाँ 1.5 साल ही हुआ है इसको। 2.5 तो साल और हो गया ना, नूनेस पिछला पूरा नूनेस सीजन इस खेला साल है वो। आया है, नूनेस तो पिछले साल ही आया है। नूनेस 2 साल पहले आया था। नूनेस पिछले साल आया, दूसरा साल है उसका। हम्म तो मुझे okay. लगता है आई थिंक बहुत सारा हाईलाइट साला पे हो रहा था बिकॉज साला हैज नाउ मूव्ड इनटू दैट रोल ऑफ बीइंग अ क्रिएटर मोर देन अ गोल स्कोरर। एंड व्हेन यू हैव हम्म टू प्लेयर्स जिसमें से एक नूनेज है who's missing his chances a lot. आई थिंक हाईएस्ट नंबर पे वही है इस साल भी, लास्ट ईयर भी यही था, इस बार भी यही है। सेकंड नंबर पे शायद हालैंड है, बट वो एक इशू है। बट आई थिंक वो देखना पड़ेगा हाउ डू दे सॉल्व दिस, वेदर दे सेल साला, फिर तुम रिप्लेस कहाँ से कर रहे हो गोल्स, बिकॉज यू डोंट हैव गोल्स इन योर फ्रंट लाइन। सो हम्म बहुत सारे इश्यूज हैं, हाउ But you डू दे never know, सॉल्व दैट। right? You never know. Maybe because obviously the tactics and everything, the way you kind of play football is also going to change. So maybe maybe that is what Yeah, brings out the जब best तू from तू बोल रहा है Nunes. कि Yeah. ये तू बोल रहा है कि नंबर 10 would be more focused under Arne Slot, maybe Nunes would get the tap-ins more and all that, or maybe he might get that confidence back. यार कुछ नूनेस के टैप स्ट्राइकर्स इन को ना, बहुत मिस हुए हैं यार, मैं तो बता नहीं सकता हूँ। मतलब नूनेस से तो मैंने अब एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है। मेरा जीरो हो चुका यार है उससे देख, एक्सपेक्टेशन। आई एम नॉट थ्रोइंग हिम अंडर द बस, बट यार मैंने कोई ट्विटर पे देखा था कि जब ये गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे तुम इसको हाँ क्लॉप को, तो नूनेस ने क्लैप क्लैप कुछ नहीं किया, वो बस अपना खड़ा हुआ साइड में। हाँ, इवन उसके बाद जब अंदर जाके उसने एक स्पीच दी थी क्लॉप ने, तो सब लोग ताली बजा रहे थे, अच्छा नूनेस ने ताली नहीं बजाई वहां पे भी। बट ठीक है, आई थिंक वो थोड़ा ना उसका इशू हुआ था बिकॉज अ लॉट ऑफ फैंस स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम ऑन सोशल मीडिया। उसने बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया भी बहुत डिलीट उसकी कर दिया था। फैमिली को भी अब्यूज करने लगे थे यार। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा हो गया, वो थोड़ा एक्सट्रीम चले जाते हैं फिर फैंस, वो भी गलत है। हाँ वो बट खप गया ना, वो तो ट्विटर विटर हटा दिया उसने, बंद बंद कर दिया है, हाँ, वो सोशल मीडिया उसने हट कभी गया भी था। इंटरव्यू दिया है कि मुझे लगता है मेरी ट्रू फैमिली इज व्हेन आई प्ले विद यूरुग्वे स्क्वाड, बिकॉज दैट इज वेयर आई कैन बी माई सेल्फ। आई थिंक बट ये चीज उसकी काफी खराब है बिकॉज यार मुझे लगता है लिवरपूल फैंस ने ना उसको लास्ट 2 साल में बहुत सपोर्ट करा है। व्हाट आई हैव हर्ड हाँ इज यार चाहे वो पास करे चाहे वो टच करे, पूरे स्टेडियम में ना नूनेज नूनेज चिल्लाने लग जाते हैं फैंस। तो आई थिंक होते ही हैं, हर हर क्लब में होते हैं, यार हर मैं बता रहा सोशल हूँ ना, मीडिया। ये क्लॉप, ये जो 9 साल था ना क्लॉप का, इसने फैंस को भी चेंज किया भाई। इसने फैंस की हाँ मेंटालिटी को चेंज करा है, इसने फैंस की टॉलरेंस को चेंज करा है। और यार एक हम्म फैन भी तो एग्जाम्पल किसको देगा? मैनेजर को देखेगा। यू सी द हाँ मैनेजर, द वे ही स्पीक्स एंड ऑल दैट, तो एक फैन भी बोलेगा यार हम टॉक्सिक रह के क्या करेंगे यार, हमारा हम्म मैनेजर नहीं है तो वी शुड काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम हिम। तो उस सेंस में भी बहुत होता है कि यार लेट्स चेंज द वे, लेट्स स्टार्ट सपोर्टिंग द प्लेयर्स, बिकॉज मैनेजर सपोर्ट कर रहा है। द मेन रीजन वाज क्लॉप भाई, द मेन जो द पर्सन हु वाज होल्डिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ द एंटायर क्लब, फैंडम, एवरीथिंग वाज क्लॉप। तो उस सेंस में ना बहुत बड़ा चेंज होने वाला है लिवरपूल में, इन माय डे वन में आके पर्सपेक्टिव। उसने डाउटर्स टू बिलीवर्स का एक वो स्लोगन मारा था, 9 साल तक वही चलता रहा। एंड The इतना normal भाई पता one. नहीं तुम लोगों ने उसकी The स्पीच। normal one. हाँ, आके नहीं ये बोला मैं था बोल उसने रहा था, नॉर्मल वन। द नॉर्मल वन, द नॉर्मल हाँ, वन भाई, आइकॉनिक कोट्स एंड ही स्टेड ट्रू टू देम, ही एंड स्टेड पता वेरी नहीं तुम ट्रू लोगों टू ने देम। उसकी फाइनल स्पीच सुनी थी या नहीं सुनी थी, आई एम श्योर सुनी होगी शायद, सुनी थी भाई, कहीं ना सुनी कहीं थी। पे तो यूट्यूब पे। भाई मैंने मतलब अरे इतनी क्लासी वो मैं नहीं तो देखी लाइव सुन बिकॉज रहा था भाई। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट उसने आर्ने स्लॉट का स्लोगन दे दिया भाई लोगों को। हाँ मतलब मैं तो, हाँ, और तब तो ऑफिशियल भी आर्ने नहीं हुआ था। स्लॉट, हाँ भाई वो चैंट करवा दिया यार पूरे स्टेडियम को। पूरे स्टेडियम में, तो मैं सरप्राइज इससे था बड़ा आई थिंक। एंडोर्समेंट और क्या होगा? हाँ बट देखते हैं यार, अभी आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आर्ने स्लॉट। अभी आए पहले उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होए, लेट्स अंडरस्टैंड अच्छा शर्मा, प्री मैं सीजन तेरे में से क्या। एक चीज पूछता हूँ, What is 9 साल what is like, but a quick question about like what is the best moment like under Klopp? भाई मैं What is the best moment that एग्जैक्टली you've यही had? बोलने, यही पूछ रहा था मैं। हाँ मैं लिटरली यही पूछ रहा था शर्मा से। भाई एक अच्छा बेस्ट देयर आर चलो मोमेंट, लॉट दोनों ऑफ तेरे, एक ही साथ कर लेते हैं। What is the best moment and what is something that you'll miss about Klopp? ये दो चीजें बता, क्या है लगता है तुझे? यार बेस्ट मोमेंट मेरी दो हैं। एक हम्म, आई थिंक मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूँ जब हमने यूनाइटेड को 7-2 हराया था। 7-2 था या 7-1 था, जो भी स्कोर लाइन थी, मैं वो दिन नहीं भूल 7-1 था, 7 7-0 ही था भाई, 7 7-0 था। हाँ 7-0 था, 7-0 हाँ था। आई थिंक उससे ज्यादा, 1 मिनट लाइट चली गई। हाँ लाइट गई थी, बोला बेस्ट मोमेंट यही था भाई, लाइट गई गई। बेस्ट मोमेंट 7-0 पे लाइट चली गई भाई इसकी।
मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं घर पे बैठा था और गोल पे गोल पड़े जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो कैसे रहा है। मतलब होता है कभी-कभी, शायद हम भी 8-2 हारे थे एस्टन विला से, बट आई थिंक वो एक दिन था जो आई भाई विल मेरे नेवर को वो फॉरगेट। गेम भी याद है, मेरे को वो गेम बहुत क्लियरली याद है। कोविड का टाइम था हाँ, ना ये? नहीं कोविड हाँ से कोविड पहले के था टाइम कोविड था का ये। टाइम। नहीं कोविड कोविड के का टाइम ही टाइम था था ये ये। 82 तो 82 हाँ जब स्टार्ट ही हुआ था अच्छा, ना जब तो कोविड जो थे हाँ, नेक्स्ट सीजन नहीं मैंने कोविड के टाइम इसलिए तो हम मेरे को प्रीमियर याद लीग है। जीते हैं। कोविड के टाइम तो हम प्रीमियर लीग जीते उसके थे। नेक्स्ट सीजन था वो उसके नेक्स्ट सीजन था अच्छा, अच्छा, जीतने के बाद हाँ वाले सीजन में। हाँ जब वॉटकिंस वॉटकिंस आ गया था बट तब एक आई थिंक ये मेरा हाईलाइट है, एंड सेकंड हैज टू बी द प्रीमियर लीग यार। प्रीमियर लीग आई थिंक अगर हम्म तुम हमें बोल देते ना कि हम 9 साल में बस एक एक ट्रॉफी जीतेंगे और वो प्रीमियर लीग होगी, आई थिंक हम वो भी ले लेते। वो जो एक्स्ट्रा ट्रॉफीज उसने जितवाई हैं, वी वर रेडी टू सब जीता है यार, वो सब तो जीत गिव चुका दैट है। अप। कौन मैं कौन वही सी कह रहा हूँ, ट्रॉफी जो नहीं जीता वो? क्लब वर्ल्ड कप, सारी जीत गया, आई बट थिंक आई थिंक कम्युनिटी वी शील्ड विल भी सारी जीते हो नहीं फाइंड। तुम? सारी जीते हो तुम? कम्युनिटी शील्ड भी जीते हाँ, हो? सब जीते हैं। कम्युनिटी सब शील्ड भी जीते मुझे, हो? जीते हो कम्युनिटी शील्ड नहीं जीते हम शायद। नहीं जीते नहीं जीते कम्युनिटी क्या? शील्ड नहीं जीते अच्छा अच्छा अच्छा। कम्युनिटी शील्ड नहीं जीते हैं, बट उसके अलावा पर हम सारे अपार्ट फ्रॉम जीते हैं दैट आई थिंक। एवरीथिंग, यूरोपा, चैंपियंस हाँ, लीग, सब सब, यूरोपा नहीं जीते हैं, एफए कप यूरोपा नहीं जीते। यूरोपा कहाँ जीते हैं यूरोपा नहीं अच्छा यूरोपा नहीं जीते हार जीते। गए थे ना फाइनल, वो एक सेविया से फाइनल हारे गए थे थे। जब सेविया से गए थे हार गए थे अच्छा, वो दैट वाज हिज चैंपियंस लीग फर्स्ट सीजन ना क्लब का? सेकंड सेकंड था पहला, शायद सेकंड सेकंड सेकंड। फर्स्ट में तो कहीं थे नहीं नहीं, यार, सेकंड में था। हाँ, हाँ अच्छा सेकंड हो। 3 चैंपियंस लीग में थे जिसमें से एक में जीते हैं, 2 में रियल से हार गए। आई थिंक यार शायद प्रीमियर लीग हम एक और जीत सकते थे, बहुत ही मिलीमीटर्स का डिफरेंस था वो 97 98 वाला, वो जो गोल भाई लाइन में जाके आई 97 थिंक पॉइंट्स ला के स्टोन्स ने प्रीमियर लीग नहीं जीत रहे यार। भाई मतलब पुराने प्लेयर 97 तो सोच और रहे होंगे 98 यार। दो बार था 97 98 दोनों बार हारे एक पॉइंट से और एक बार 92 भी था। तो अ, तो ठीक है, आई थिंक, और मतलब जो ये मैं तो है मिस ही करूंगा भाई ना अगर उसका। अगर गार्डियोला नहीं था इन सिटी यू वर डोमिनेटिंग द लीग फॉर द लास्ट 5 इयर्स ये सिंपल बात है ना यार 9 एंड इयर्स नहीं बट एंड हाँ मुझे 6-7 साल पता है एटलीस्ट भाई, इसका जो हम लोग अभी बोल रहे हैं ना कि गार्डियोला ने फार्मर्स लीग बना दिया है, सिटी ने फार्मर्स लीग बना दिया है। भाई इफ देयर वाज एनी अदर क्लब जो भाई तलवार लेके खड़ा होते थे कि बेटा कोई फार्मर्स लीग नहीं है, हम हैं, अभी भी हम हैं, हम्म वो एक ही क्लब थी भाई, लिवरपूल। और कोई नहीं। आर्टेटा उसके तो बाद भी अभी भाई 4 आ जीत गया रहा है। लगातार वो। उसके बाद भी हाँ 4 जीत हाँ गया वो हाँ। लगातार। नहीं भाई, पर फाइट तो तुमने दी है ना यार, ट्रायल तो करके छोड़ा था बट उनको हर बार। बट एक चीज है, अगर अगर वो 115 के जो चार्जेस हैं सिटी के, अगर वो हो जाएंगे एंड एक्चुअली में लगे होंगे, तो काफी बुरा लगेगा कि यार ड्यूरिंग दैट टाइम वी लॉस द लीग्स, एंड उसके चार्जेस बाद में जाके 4 साल बाद 6 साल बाद जाके आ रहे हैं। बट ठीक है, जो भी, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। जो चीज विल मैं उसकी वो मिस सिटी करूंगा सिटी के इज टाइम में द करेंगे डिस्कस। सेलिब्रेशंस आई थिंक। वो जो सेलिब्रेशंस होती थी उसकी इमोशनल सेलिब्रेशंस, वो जो फिस्ट पंप्स भाई होते थे, फीफा, आई भाई थिंक। फीफा में उसका सेलिब्रेशन है ना, बहुत गजब लगता है यार, वो बिल्कुल पागल हो जाता है। ऐसे ऐसे करके मजा आ जाता है यार। और गार्डियोला का उतना ही गंदा है गार्डियोला को उतना ही गाड़ी गंदा है। बट तुम लोगों के क्या है, तुम, आई जस्ट वांटेड टू मेरी सी कि मेरी न्यूट्रल। बेस्ट मोमेंट तो ये है मेरी बेस्ट मोमेंट तो वो बार्सिलोना तेरी वाली बेस्ट है मोमेंट नाइट 7-0, 7-0 यूनाइटेड। अब हट चुकी है मेरी बेस्ट मोमेंट नहीं है वो साले एक रात पहले हम दोनों बात करते कि भाई हरा सकते हैं बहन जो 7-0 हो गया अच्छा गांड मार दी उन लोग ने हमारी क्या चल रहा है एक रात पहले बात करते हैं अंशुमन में भाई नहीं चांस तो लग रहा है भाई लिवरपूल अच्छा नहीं खेल रही है यूनाइटेड आर लाइक रियली इन दैट मोड और वो भाई 7-0 हो गया मतलब यार ये तो एक्सपेक्ट नहीं मैंने किया था ओल्ड ट्रैफर्ड को 2-3 खाली हारते होते फिर हुए भी नहीं देखा था चलता भाई। आई थिंक मैंने वो फोटो भी रखी हुई है अपने फोन में। आई थिंक 48 या 50 मिनट्स पे ओल्ड ट्रैफर्ड खाली हो चुका है, अबे नहीं लोग जा तुम्हारे रहे हैं होम बाहर। पे था भाई तुम्हारे होम पे अबे था गेम तुम्हारे होम पे था यार। तुम्हारे नहीं होम पे था एक, भाई अरे ओल्ड ट्रैफर्ड में भी तो हराया था तुम्हें 4 या 5-0 कुछ, वो जब तो गंदा ही लाइट सीजन चली गई था भाई वो जैसे। तो अरे यार, कोई यूनाइटेड ये में बात मत 7-0 कर भाई। कोई यूनाइटेड 7-0 करता है, लाइट चली जाती है यार इसकी। हाँ तो मेरा बेस्ट बट मोमेंट तो हाँ लिवरपूल बार्सिलोना वाला है जो कमबैक मारा था उसने बार्सिलोना के अगेंस्ट 4-0 वाला वो बेस्ट भाई, मोमेंट था तुम्हें मेरे हिसाब से अंडर क्लॉप पता नहीं, तुम लोगों को पता ही नहीं पता, बट मैंने वो मैच देखा ही नहीं था। अच्छा। हाँ तूने बताया था बाद में तूने बोला था कि मैंने हाँ, मैच देखा ही नहीं वो मैं सो रहा क्योंकि था, मुझे एक्सपेक्टेशन थी। अकॉर्डिंग टू यू कि खत्म था हो गया था कि नहीं जीतने वाले हाँ, हम हाँ मैंने तो सुबह तो उठ कोई के सेंस देखा नहीं और था मुझे पता चला। हाँ सरप्राइज, शॉक्ड हम्म, था, बल्कि सरप्राइज भी नहीं था वो तो हाँ मैं। तो वो बेस्ट मोमेंट था और मैं जो मिस करूंगा
वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अबाउट द 12:30 किक ऑफ गेम्स। तो अब वो नहीं होने वाली है, खत्म हो चुका है। पिछले 4 साल से बस आई थिंक बेंच पे खेलते हैं, आई फिर थिंक साइड किक आर्ने ऑफ कैसे हमारे लंच टाइम आर्ने किक स्लॉट कुछ ना करे ना, कुछ भी ना करने स्लॉट, ये लेगेसी कायम होनी चाहिए। लिवरपूल को फिर से अर्ली, फिर खप गया वो। कंसिस्टेंटली बोलते रहो। मेरी ये 2 तेरे चीजें लिए हैं क्या था फिर। अंश? भाई जो इसका बार्सिलोना मोमेंट तो मेरा एक था ही, तो मतलब तुम दोनों ने तो मेन मोमेंट्स बता दिए। मैं मोमेंट्स नहीं थे, बेसिकली फेज था। वो फेज ना, आई फेल्ट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस 3-man पार्टनरशिप आई हैव सीन इन प्रीमियर लीग, जब से मैंने प्रीमियर लीग देखना शुरू करा है, एंड दैट वाज फर्मिनो, माने एंड साला। वो जो भाई था ना, ये फ्रंट सीरीज, दैट वाज एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग भाई। गांठ फट जाती थी, क्योंकि यार कभी भी पता नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि यार फर्मिनो जब फील्ड पे एंट्री करता था, पता था कि फॉल्स नाइन खेल रहा है, कोई भरोसा नहीं है, वो हैट्रिक मार जाता था यार बंदा। और ये दोनों क्रिएट कर रहे हैं, और जब उससे नहीं हो रहा है, बेसिकली वो इतना फ्लेक्सिबल था कि जब उससे नहीं बन रहा है, जो प्रोबेबली डार्विन नूनेस के साथ नहीं हो पाया, कि भाई तेरे से गोल्स नहीं हो रहे, साला और माने मतलब बिल्कुल खत्म। सिटी को तो ऐसे पेला है उन्होंने कितने गेम्स में भाई, माने ने, साला ने कितनी बार रेंज दिया था उनको। तो मेरे को वो और जो है ना पार्टनरशिप, मैंने बार्सिलोना के ऑब्वियसली उतने गेम्स नहीं देखे हैं जब ये लोग थे, मेसी और सुआरेज और सुआरेज, नेमार नेमार, नेमार या फिर वो बेंजेमा, रोनाल्डो, और इस तरफ कौन था यार, बेल 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 बेल। ये मैंने प्रीमियर लीग ही सबसे ज्यादा देखा है, और मैंने प्रीमियर लीग में फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि यार ये 3 प्लेयर, इनमें से किसी को भी हटा दो ना, लिवरपूल में वो नहीं है। अगर इसमें आ गए भाई, तुम पीछे से किसी को भी चेंज कर दो, ये फ्रंट थ्री होने चाहिए, दे विल विन द गेम, दैट इज और ऑल। कभी अगर ये नहीं चलते थे तो हमारा कल्ट हीरो आ जाता था, ओरिगी। हाँ कोई वो ना कोई ये मेरा गोल भाई, मार वो जाता, जो भाई एवर्टन ओरिगी, मर्सीसाइड वाला एवर्टन जो वाला, गोल मारा था उसने, एवर्टन वाला, हाँ। भाई भाई साहब, क्रेजी भाई ओरिगी को भाई। तो लिटरली क्लॉप ने बोला हुआ है, ही इज द कंप्लीट स्ट्राइकर। इसने कभी मतलब और ऐसा कभी नहीं बोला कि और कब ही इज अ कंप्लीट फुटबॉलर, बट एज अ कुछ स्ट्राइकर ही इज द कंप्लीट स्ट्राइकर। कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनको स्टार्ट करवाओ कभी अच्छा नहीं खेलेंगे। आई थिंक इनका वो था, हर्नांडेज था शायद यूनाइटेड में एक, उसको तुम स्टार्ट करवा चिचेरिटो दो भाई, भाई, परफॉर्म ही नहीं करता था। चेल्सी में मेरे को डर रहता था कि ये बेंच से ना आ जाए, और साला चेल्सी के मैचेस में ये बेंच से आता था और जिता के या तो ड्रॉ करवा के चले जाता था। और माने का मुझे याद है, और आई थिंक बाकी पता होगा शायद, दैट क्लब डिडंट वांट माने, उसको गोड्से साइन करना था, गोड्से एंड साइन माने करना था। वाज अच्छा माइकल एडवर्ड्स साइनिंग। तो काफी डिस्कशन हुआ था, एंड देन दे डिसाइडेड कि माने साइन भाई, करते मेरे हैं। को याद है शर्मा, जब माने आया था तो खुश नहीं था, हाँ, क्योंकि मेरे को उसका ध्यान गोल है, और स्कोरिंग हम लोग ने रिकॉर्ड वो बात सब करी अच्छा थी। नहीं था। हाँ, हाँ, और बट मैंने यही वही है बोला था कि कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है, बट वही है कि जो देखा था ना, कौन से क्लब से आया था वो, साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन। हाँ तब तो हमारा भाई, भाई साउथहैम्पटन में लिवरपूल बी थी ना, साउथहैम्पटन। रिकी लैम्बर्ट था ना, रिकी लैम्बर्ट आया था, रिकी सब लैम्बर्ट, चीजें ललाना, सब लॉवरेन, सब मिल गए क्लाइन। थे। ये जो चेल्सी करती है यार, ब्राइटन के साथ, रिकी लैम्बर्ट, वही तो है। हाँ, हाँ, ब्राइटन के साथ करती है चेल्सी, वही तो करती है, सारे ले सारे लिए पोच थे कर हमने लेते हैं। उनके। भाई मैं तो खप गया था ब्राइटन से, कि साले तुम 100 मिलियन जो तुम्हें मिले हैं फ्री में, उसके लिए तुम बू कर रहे हो कैसेडो को। फैन जो तुम्हें इतना अमीर बना दिया यार इस क्लब को, भाई और तुम कैसेडो को बू कर रहे ब्राइटन, हो। एक लास्ट चीज है फिर खत्म करते हैं, बट मैंने ऐसा सागा कभी नहीं देखा था, ये जो काइसेडो वाला हुआ था। एंड मुझे समझ नहीं आया कि उसमें लिवरपूल कैसे इन्वॉल्व थी, क्योंकि लिवरपूल ऐसी सिचुएशन में घुसती ही नहीं है जहां पे प्राइस वॉर हो रहा है, बिडिंग हो रही 100 है। मिलियन। और मैं सरप्राइज था कि भाई ब्राइटन इतने चौड़ में ऑक्शन करवा रही है रात को 12 बजे, कि जिसकी सबसे ज्यादा बिड होगी वहां पे हम बेच देंगे प्लेयर को। रात को 12 बजे डेडलाइन टाइम आया, लिवरपूल की बिड बढ़ी, और मैं रात को बहुत ही खुश सोया कि भाई काइसेडो साइन कर लिया, एक वो स्टेटमेंट साइनिंग कर दी, 100 आ मिलियन गया लगा तुम्हें, आ दिए। गया तुम्हें। सुबह और उठा तो आफ्टर देखा कि आवर्स भाई ये क्या। आफ्टर आवर्स आया था न्यूज एकदम से कि चेल्सी ने एग्री कर लिया डील। अरे ये क्या हुआ, अभी हाँ, तो आया था लिवरपूल ने एग्री करी है डील, और फिर तुम नहीं, चले गए अगले वो अगले दिन चेल्सी, ही अगले दिन ही तुम चले गए वो उसके पास, वो दूसरा साथ है लाविया। लाविया, अगले दिन ही लाविया, चले गए भाई, चलो 45 मिलियन दे देंगे हम तुम्हें। अगले आप तो और फिर 45 लेंगे लाविया ही भी नहीं। ले गए भाई। हाँ बोले 45 तो अब देंगे नहीं, अब तुम्हारे पास तो 100 थे, अब दो 70।
कुछ भी चल रहा था वो 2-4 दिन तक। भाई मैं तो ये नहीं समझ मैंने पा रहा ऐसा हूँ मजा कि इस सिचुएशन में प्लेयर्स को चेल्सी पुल कर क्या क्या ऐसा बोल रही है प्लेयर्स को चेल्सी कि हम आपकी मैं जिंदगी बदल देंगे। मैं बता रहा हूँ भाई 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये चीज है भाई। बट पैसा फनी तो बात मतलब वही ये होगा थी ना। कि बेसिकली हमने पहले मतलब उनको एज अ प्लेयर लेके आ रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भूल जाओ, जो करना है करो, 8 साल तक तो तुम पैसे छापोगे। प्लेयर की मेंटालिटी बट हमें बदल दे रहे हैं। फनी बात ये थी कि हमने पहले काइसेडो के लिए 100 मिलियन की बिड लगाई, वो हार गए। फिर हमने 45 की लाविया पे लगाई, वो भी नहीं आया। फिर फैंस में ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि भाई अभी कोई बढ़िया प्लेयर साइन करेंगे, पैसा तो है, 100 एंडो मिलियन है, और आता है एंडो आता है भाई आउट ऑफ नोवेयर। फ्रैंकफर्ट से कैप्टन आ रहा है एंडो 30 साल का 15 मिलियन की साइनिंग करके खत्म, हमारा हो गया। भाई बट फिर अच्छा भी खेल गया है वो ठीक है, तो, एंडो ने प्राइवेट। काफी संभाल लिया, हाँ काफी संभाला है हाँ भाई। अच्छा खेल गया। अच्छा मैं जो भाई मिस बट करने सही है। वाला हूँ ना बट वो मेरे लिए इसके सेलिब्रेशंस ही है, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा था प्रीमियर लीग में किसी मैनेजर को इतना एनिमेटेड होके सेलिब्रेट करना, एज इफ कि वो साला बचपन से ही लिवरपूल का फैन है। कॉन्टे वो कॉन्टे नहीं था भाई, जो कॉन्टे भी यही था। मैं यही तो बोल रहा हाँ हूँ ना, मैं अभी बोलने वाला था कि क्लॉप पहले आया था, राइट? उसके बाद वर्ल्ड कप था। हाँ, कॉन्टे मतलब क्लॉप पहले आया है कॉन्टे से 1 साल अच्छा, पहले। ओके हाँ ओके, अच्छा हाँ ठीक हाँ है, हाँ तो कूल 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 कूल। हाँ 1 साल पहले आया है और उसके बाद वर्ल्ड कप था। क्लॉप के 1 साल के बाद वर्ल्ड कप, वहां पे मैंने देखा पहली बार कॉन्टे को ऐसे पागल होते हुए। मैंने कहा कि भाई ये मैनेजर अपना है, मजा आ जाएगा ऐसा ही। क्योंकि अब क्लॉप को देख के ना मेरे अंदर से आ गया था यार कि शिट यार, ऐसा मैनेजर क्यों नहीं है यार हमारे पास, जो साला प्लेयर से ज्यादा वो खुश हो रहा है मैनेजर। और ये चाहिए यार, तो प्लेयर देख रहे हो भाई मैनेजर इतना खुश हो रहा है, हमें करना पड़ेगा, कुछ तो करना चाहिए यार, ऐसा पैशन चाहिए। बट कॉन्टे तो और भी लेवल पे चला जाता था, वो तो पहले क्राउड में चला जाता, लगता था वो कूद ही जाएगा क्राउड में हाँ, भी। कूद अबे भाई कॉन्टे जाना तो क्राउड अलग कूद लेवल क्या, पे चला जाता कूदा है था। अरे वो। क्राउड, भाई क्राउड तो छोड़, क्राउड तो समझ आता है भाई, वो होता है ना आप जहां बैठते हो उसके ऊपर वो जो कवर रहता है बेंच पे, भाई वहां चढ़ गया था वो कॉन्टे। जैसा 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 खेतू चढ़ गया था एक बारी अपने रूम में। हाँ हाँ पंखे पे ये ऊंचा लटका हुआ ये रेफरेंस नहीं समझ में आएगा किसी को, बट हाँ। है। हाँ तो ऋषभ, तू खैर कुछ तो बोल रहा था, वो ही, खत्म करते हैं। हाँ हाँ, अरे मैं बस एक लास्ट चीज बोल रहा था, मैंने एक चीज पढ़ी थी अभी 2 दिन पहले अबाउट नूनेस। तो नूनेस के जो बेंफिका का जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, उसका वैल्यूएशन फॉर नूनेस वाज अबाउट 40-50 मिलियन। अगले दिन बिड आती लिवरपूल की अबाउट 70-80 मिलियन, कुछ पहले बिड मारी थी ना, 80 मिलियन की कुछ बिड मारी थी। तो भाई उसने बोला अपने जो भी एजेंट वेजेंट होगा उनके, बोला भाई तुम सीधा 100 मिलियन मांगो और इसके बाद खत्म करते हैं। अगले दिन डील आ गई एंड नाउ ही इज अ 100 मिलियन प्लेयर फॉर लिवरपूल। मतलब वही न्यूज है, मतलब अभी आई है ये तो, मेरे पता नहीं, ये शायद बहुत पहले की न्यूज होगी, बट पढ़ी मैंने अभी कि उसकी वैल्यूएशन दैट दे वर टारगेटिंग एट दैट टाइम वाज 40-50 मिलियन, नॉट 100। अब 8 वो 40-50 से मे बी अगर लिवरपूल बिड करती कुछ मे बी 30-40 के अराउंड, तो देन वो होते कि हाँ चल ठीक है 60 मिलियन में डन करके खत्म कर देते, बट देन दे बिड ओनली लाइक 80 मिलियन, व्हिच वाज काइंड ऑफ वियर्ड लाइक टू हियर कि लिवरपूल कर रही थी। बट हाँ आई थिंक उस समय जब तुम्हारे पास ये सब नहीं थे ना, आई थिंक तब तक ये हट चुका था, हाँ। एडवर्ड वेडवर्ड नहीं था तब। हम्म। तो दैट इज व्हाई प्रॉब्ली जो तू बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, यही कि तुम्हारे साइनिंग्स हैव बीन लाइक इतनी अच्छी नहीं रही हैं, काफी हद तक बहुत हाँ, ही खराब साइनिंग्स करी है तुम लोगों ने पिछले 2 साल में। थोड़ी अच्छा ऑफ मैं बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी मैं टीम। एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं, क्योंकि हमने डार्विन नूनेस पे इतनी बात कर ली है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लिवरपूल गोइंग फॉर अ न्यू स्ट्राइकर? यार शुड दे गो फॉर अ न्यू अभी कुछ स्ट्राइकर? रूमर्स रूमर्स तो नहीं आ रही हैं, बट मुझे लगता है दे शुड। शुड दे गो? हाँ, दे शुड। आई डोंट सी दैट नूनेज में वो इंस्टिंक्ट्स हैं ऑफ बीइंग दैट फिनिशर, बिकॉज 2 साल में ना बहुत सारी उसकी मिसेस देख ली हैं। एंड अब मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि इसके में वो है ही नहीं। मैं परफॉर्मेंस तो मुझे इशू ही नहीं है उसकी परफॉर्मेंस से। इट इज नॉट दैट वो 100% नहीं देता है। ही इज क्या भाई, लाइट तो मेरी। बट जो भी आई थिंक बट मुझे लगता नहीं है वो बिकेगा, बिकॉज जो रूमर्स नहीं है, रोमानो ही बोल रहा है दैट आर्ने स्लॉट इज एक्साइटेड टू वर्क विद हिम। एंड एक चीज और है कि अभी ना वैल्यूएशन इतनी मिलेगी नहीं नूनेस की, अगर वो बेचने भी जाएंगे, यू कैन नॉट रिप्लेस हाँ हिम। वो तो चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है हाँ,
कि वो तो वैल्यू में बिक जाए। तो आई थिंक जैसे ओसिमेन जैसा प्लेयर हो गया, वो सब प्लेयर्स तो वैसे ही बहुत महंगे हैं, तो कोई वो है नहीं, मुझे लगता नहीं है कि वो मतलब बिकेगा। ओसिमेन का तो रिलीज क्लॉज ही 70 का है ना। पता नहीं यार, आई एम नॉट अवेयर, बट मुझे हाँ अगर मैं हूँ, ओसिमेन का आई थिंक आई हैव 70 है। लॉस्ट दैट, पता नहीं, मैं अपना ट्रस्ट बता रहा हूँ कि आई हैव ट्रस्ट लॉस्ट ऑन दैट फेथ विद नूनेज, बिकॉज मुझे लगता है ही इज नॉट द राइट स्ट्राइकर फॉर लिवरपूल टू विन द टाइटल, क्योंकि वो इतनी क्लच सिचुएशंस में व्हेन यू नीड दैट स्ट्राइकर की एक चांस मिले और तो एक गोल मार दे वो बंदा, वो प्लेयर नहीं है। वो जोटा है हमारे लिए, बट जोटा इज इंजरी प्रोन थोड़ा, बट यार तो इसलिए जेन्युइनली मुझे बताऊं लगता तो है जोटा से भी बेटर एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो सिर्फ इंस्टिंक्टिवली स्ट्राइकर हो, जो मतलब जो हम लोग बोलते हैं, जो मतलब मेरे हिसाब से आर्सेनल क्यों थोड़ी सी पीछे रह गई, नहीं कर पाई टाइटल तक, was because they didn't have that kind of। भाई 4 गोल मारे हैं गैब्रियल जीसस ने पूरे सीजन एंड 28 अपीयरेंसेस। बहुत खराब है, बहुत ज्यादा जीसस का तो खराब है एज अ शायद आ रहा है स्ट्राइकर। कि वो बेच देंगे उसको इस साल। काफी काफी खराब था। तो उनको एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए और लिवरपूल को एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए भाई। और अब तो और ज्यादा व्हेन यू आर प्लेइंग अ नंबर 10 एज यू आर सेइंग कि वो मे बी ही माइट गो इनटू 4-2-3-1, बिकॉज as far as I remember, Jota is much better playing behind a striker. वो आई थिंक उसने अपना पूरा करियर वुल्व्स में वैसा ही खेला है। ही प्लेड अ नंबर 10 एंड आई थिंक बहुत वुल्व्स में अच्छा थ्राइव करेगा। लेफ्ट में था शायद वो। नहीं वो आई थिंक वो पूरा ये जो पीछे का लेन है ना, वो चौथा खेला है। और जब उसको लेके भी आया था, मैं यही सोच रहा था यार कि ये तो उसको लेके आए मिडफील्ड और कैंप के लिए लेके आए होंगे। देन ही काइंड ऑफ मूव्ड इनटू द स्ट्राइकर पोजीशन। बट मेरे हिसाब से तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज एक स्ट्राइकर चाहिए भाई। बाकी चाहे कुछ भी बेचो, ना खरीदो। नहीं, अगर प्रायोरिटाइज, इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, बट प्रायोरिटाइजेशन करेंगे। में आई थिंक हमारे पास डिफेंस और मिडफील्ड है, बिकॉज डिफेंडर्स अच्छा नहीं है और वो सारी चीजें हैं। बट इस पे अलग से डिस्कशन करते हैं, अभी खत्म करते हैं। आई थिंक बहुत लंबा हो गया, जो कोई अगर देखेगा भी हमारी वीडियो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भाई बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। अरे 2 नहीं एपिसोड की नहीं भाई, बातें अब हमने। मैंने बहुत देख लिए हैं हमारी जो इंडियन फुटबॉलिंग यूट्यूबर्स हैं, 3-3 4-4 घंटे चल रहा है उनका। तो अभी देख लेते हैं, हाँ वो जिनको है। इंटरेस्ट आएगा जो बट पढ़ कर लेंगे। वो तो वॉच अलोंग है उनके, वीडियो थोड़ा बना रहे हैं दो नहीं दो नहीं चार नहीं चार नहीं घंटे नहीं, के। अरे क्या बात कर रहा है भाई, कल ही रात को मैं बैठा हुआ था, कोई एक चिल स्ट्रीम थी, 3 घंटे चला है। हाँ तो चिल और स्ट्रीम और चेल्सी आर्सेनल हमारी चिल स्ट्रीम तो क्या नहीं है थी, ये चिल भाई, स्ट्रीम थी। इसको अब बियर खोलो, एक 2 बियर घंटे बियर का बियर ना, भी 2 पीते हैं घंटे। बढ़िया। ये रियूनियन वाली स्ट्रीम थी हमारी। हाँ और स्ट्रीम चलो चलो ठीक है। So I think we'll finish the video here. Next, let's discuss about where our clubs are going to strengthen. कौन से players you feel कि वो बिकेंगे, कौन से players should be signed. I think that's the next discussion we have. We should also focus on City का title 4 in a row. I think commendable feat, not या easy to achieve. ये And मतलब वही है, थोड़ा सिटी एंड आर्सेनल पे बात करेंगे, Arsenal पे द discussion 2 करेंगे. टीम्स दैट But वर। yeah, हाँ so yeah, whosoever watched waited till these last 2 hours to finish for us to finish the video. Thanks a lot for watching the video. Do like the video, share it with your friends and family members, and also follow us on यार, YouTube, फैमिली also on our मेंबर्स तो रहने Instagram and देते Twitter हैं। handle. फैमिली मेंबर्स रहने देते हैं, आज थोड़ा फैमिली में थोड़ी कोई भी गाली अगर गलौज फुटबॉल हो गई फैन है। है, प्लीज शेयर इट विद देम. Help us grow. And third time lucky. We are expecting that third time we are going to be lucky with our consistency, with our consistency. अरे I think that is the बस only issue. लास्ट थिंग, अभी यार मैं ना ऐसी फोन पे पॉडकास्ट देख रहा था किसी का, अपने इंडियन यूट्यूबर का। Hmm. अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। मेरी मम्मी यही बैठी हुई है और मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मम्मी बोल रही है कि अच्छा अच्छा काफी चलती बात चल रही है। मैंने कहा हाँ। अचानक से वहां से आता है टोट बोली बहन का लोड़ा। मैंने कहा नहीं, बंद करो यार। एक बार फिर बात से बोलियो, क्या क्या आया सामने से? कुछ नहीं। अरे बोल ना, आउटरो टोट मिल जाएगा बोली बढ़िया, बोल तो पूरा बोल. टोट बोली बहन का लोड़ा।